So this specially for the parents session. Okay, I have invited everyone from nursery to grade 10. Okay, although the Vedic maths is not meant for everyone to be learned, but I'm just going to, this session is going to be mixed for the Vedic maths and a mental maths. Okay. Now, how many of you heard about the Vedic? Now, this has to be interactive. I want everybody to not use on the chat. Okay, you can open the mic. There are 30 plus parents already joined. Thanks for joining on time. But I just want you to interact with me. You can keep your mic open. This is not our normal webinar. This is usual a different kind of webinar or a session where parents interact with me or students interact with me. I usually don't keep the webinar one-sided. Anybody knows what is Vedic math? Any idea, whatever it may be. It is using of shortcuts to shortcuts and tricks to solve certain complex problems. Very good. That's what I know. Correct. So, what is the meaning of Vedic? Vedic is basically knowledge, right? Now, there are a lot of this thing are available. See, I get a number of queries. Almost alternate day, I get a query. Sir, what is better, Vedic maths, mental maths, finger maths, Q maths, I math, and abacus, UC maths? There's so many things are available, and people will keep on coming with the new names because it excites parents. Oh, there's something new. Let's go and try. Let's go and try. Okay. Usually, personally, if you ask me, there are two things that are very important, which is one is mental maths and one is Vedic maths. Okay. Abacus or UC maths, you say it is, there is a mixed review, but personally, I don't like. Okay, because it is just operation, addition, subtraction, multiplication, division. It keeps on going. There may be a different opinion. I don't argue with them, or I don't differ, or I don't want to justify also. But personally, I have done with my kids. Okay, I find all the three, four maths I've done with them. Okay, I don't find any excitement. This is something a calculator, what calculator is, this does by the abacus. Okay, and main part is they include the abacus in very early stage of the age, even in fourth year, fifth year of the child. Okay, not even they are in grade one. They introduce addition, subtraction. When the concepts of the addition, subtraction is not known to them, what is addition, what is subtraction, what is multiplication, they just mentally or they mechanically they do it. So, and there is no pattern. There is no pattern. There is something you just have to. I just give a couple of examples. Suppose if you say 4, 5, 9, 7, 3, 6. Okay, if you want to add something like this, so abacus will keep on doing addition like this. But in mathematics, you will pair this, you will pair this, and then you'll pair this, and then you'll add. So this is how actually they do it. So 14 plus 10t, it is 34. So that is how the pattern will work. So it is all based on a pattern. Vedic maths is basically pattern. Mental maths is huge. Matlab mental maths, if you ask me, what is mental maths? Vedic maths is a very limited uh, scope. Okay, it has certain formulas. It is called as sutras and subsutras. So it is limited to that, but it covers a lot of complex questions also, and a very difficult one also they can come in. Now somebody asked me and they say कि सर वैदिक मैथ्स ना मैंने करा है एक साल मेरा वैदिक मैथ्स हो गया है ठीक है अच्छा आर यू कंफर्टेबल विद बोथ इंग्लिश एंड हिंदी और यू हैव वेरी स्पेसिफिक लैंग्वेज बैरियर everybody understand Hindi and English both? You can give thumbs up or you can give me Yes, sir. okay, ठीक है. Okay, usually most of them are from Mumbai and nearby area, Pune or something like that. So I think language should not be a problem. Okay, so Vedic math has sutras and subsutras. It is called a formula and subformulas. Usually sutras, it is Sanskrit based है. It is very ancient. बहुत पहले का अपना math है. So it is very good, very effective. And mental math is any level. If you start from as low as junior KG or something like this, I just written something. So how you can teach your child mental math or something like that, and then when to start with the Vedic math. Vedic math usually start with 7 to 8 years of age. Okay, and it goes for 3 to 4 years. Matlab, the slow you teach. Now many schools have also include Vedic maths as a curriculum, right?
but I think very small portion is introduced. I've seen couple of books for them. There are certain schools, they have introduced Vedic maths as a one of the chapter. Now these chapters have very limited scope, मतलब which you can learn in 1 week or maximum to maximum 2 weeks. Okay, they introduce in the school. Okay, so that is how they started, but slowly I assume Vedic maths will become a mandatory one of the portion in the school. Maybe they divide into 6 years, they divide into 3 years. I don't know how they will divide, or they divide overall from grade 2 to grade 8 or grade 10. I don't know how they will divide, but usually by from starting from grade 7 or year 7 to year 13. If you are there is a background noise, please can you keep mute? If there's a background noise, please keep yourself on the mute. Okay. So 7 years to 13 years in the range, the child should be able to complete the Vedic maths. Okay. Now, does it mean that you should do for 6 years? No. It is answer is no. Maximum to maximum 3 years, you should be able to complete once in a session, once in a week kind of session. There are people who sell Vedic maths that okay, we'll do complete Vedic maths if child is in grade 4 or grade 3 or grade 5. Okay, we'll completely. I'll tell you why they cannot do it. Okay. Why the people cannot do the whole Vedic in a single year. Maybe it is even 8 years old or maybe it is 13 years old. If there is a background noise, please keep yourself on mute. Okay. So why you cannot do it? Now mental may start with a simple trick like this, what I told you. It is friend of 9, friend of 10, and then friend of 100,000, all from 9, last from 10. Okay, this is a very basic thing which even third year, 3 year, 4 year kid, matlab that is grade 3. Okay, grade 2, grade 3 can understand, but it comes with a square root, cube root, algebraic formulas, which they will never be able to do it. So if I do somebody who knows what are roots, what are square root, what are cube roots, what are square, what are cubes, what are exponents, what are powers, what are algebra, and I teach them, oh, 4 plus 6 is 10, they already know. Okay, if I do carry over borrowing or something, very simple tricks, okay, they will always know okay, what exactly they will understand or why they should do it, right? Divisibility, factor, multiple, they already know all this, but sometimes it will feel bore them कि ये क्या होता है, okay? So it is always better either you do it 6 months का partition, ठीक है, and do it for 6 sessions, 6 months. Now, basically, to complete this, I'll tell you it is ideally 40 into 3. Okay. This is broad level. It may be 10, 20 sessions plus or minus. It can be 120 sessions. Usually, it requires to complete the whole Vedic. But any which way, if you want to do it at this stage, it is very difficult. Huh? If your child is in grade 5 and if you want to do 3 years at a stage, which should be fine. If it is 4th grade, it is still better, it is still reasonable. If child is good in grade 4, they can still do it because grade 4, 5 and 6, if you do for 3 years, okay, in grade 6 you introduce algebra, you know already algebra, you know some of the schools have introduced square and roots also, but usually best is 5 to 7. 5 to 7. Somebody asked me in chat also, sir, is there any course for grade 9, grade 10? Okay, because they have come long way and they are delayed in introducing Vedic to their child. So थोड़ा सा problem होता है. ठीक है, at because 9, 10, 10, you take any board. You take any board. Either it is IB, it is IGCSE, if you get GCSE, if you take ICSE, if you take CBSE, or you take even state board. Okay. State board is not that difficult, but yes, ICS is very tough. GCS is tough. IB is tough. IGCS is tough. Compared to what they've learned from grade 1 to grade 8. Okay. Even ICSE is tougher in grade 8 as well. Even CBSE Indian boards are usually tough compared to IB and IGCSE, right? But the pattern of the exam, the portion is completely different. If you think
Okay, my child is in ICSE or IGCSE, and I'll teach them IGCSE or IB, or they are in IB and ICSE. This is still one time possible, but this reverse is very difficult, right? So it is how you should think about this. And कोई बोलेगा कि नहीं, I'll prepare my child. This is just off it. I'm not. It is not related to Vedic and mental maths, but they will say कि okay, my child is in IB or my child is any international board, and I want them to do it any professional courses after 11, 12, like JEE, NEET, or any CET, okay, don't even think of it. Don't even think of it. ये दोनों साथ में करना इट इज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है, ठीक है, अनलेस 1 in 1,000 स्टूडेंट कैन डू दिस. सो इफ यू वांट टू डिसाइड ऑन, इफ यू वांट टू चाइल्ड सेंड योर चाइल्ड अब्रॉड, ठीक है, तो आप सोचोगे दिस इज नॉट रिलेटेड वैदिक, बट आई एम जस्ट इन्फॉर्मिंग यू. If you think your child has to be in India, and which I recommend also, because in IB International Board, okay, I have number of students, I've taken IG students, okay, some is in Australia, some is in Canada, some are in UK. There are different countries, they are into it, or some in Germany में भी है कोई. Okay, they have to go out if they want to pursue a professional courses. That the cost is huge. मतलब it runs in crores. एक आध करोड़ में भी नहीं होता, 1 करोड़ से ज्यादा ही होता है, बिकॉज यू हैव टू डू 4 years ऑफ प्रोफेशनल कोर्स प्लस 2 years ऑफ मास्टर्स. तो 6 साल में आप ये समझ लो कम से कम 50 से 60 लाख रुपया एज ऑन डेट ये चल रहा है कॉस्ट, जो आपका 1 साल का लगेगा, ठीक है. आफ्टर दैट ऑल्सो दैट यू कैन डू इट इफ यू टू सेंड देम फॉर मास्टर्स, विच इज फाइन. राइट नाउ जियो प्रोटोकॉल को ऐसा चल रहा है सब कुछ कि नो नो कंट्री इज बेटर देन इंडिया एज ऑफ नाउ, ठीक है, बट इट इज योर चॉइस हाउ यू टू डू इट. Till 10th, no problem. You can put it in any board, whichever board you think it is suitable for your this thing. But after 10th, okay, you should be very firm to decide whether you want to send your child abroad. After 12th, you can think of this. Otherwise, बहुत सारी यूनिवर्सिटी है. Maybe in next 4 to 5 years, by 2030, people will come here, university will come here, and they'll offer courses and degree from there. So that is very much possible. मेरा intuition बोलता है कि ये होगा, because they are losing the 80%, 85% student who are doing international board. They don't offer, मतलब any school having 8 grades or 8 divisions, okay, which is someone you take 250 student approximately, if you say, not even 25 go for 25 to 30 go for a international IB or A levels or IBDP. Senior don't go, right? So they are losing admission. So maybe government or they will come, university will come up with tie-up and they will have a combined courses. Many have already come. That 3 years, four out of 3 4 years, they come 1 year, 3 years here and 1 year in this thing. abroad. तो लोगों को थोड़ा सा ना एजुकेशन बहुत बाहर का अच्छा है, नो डाउट देयर सर्टन हायर लेवल्स इट इज गुड, बट बेस अपना इंडिया है, बट दैट इज पर्सनल चॉइस है, आई डोंट वांट टू कमेंट ऑन दैट. ठीक है, नाउ कमिंग बैक टू दिस. नाउ आई विल टेल यू फॉर ऑल द पेरेंट्स हु आर दैट किड्स आर इन नर्सरी, आई गेट लॉट ऑफ कॉल्स. नर्सरी, जूनियर केजी, सीनियर केजी, ठीक है, या इवन फॉर grade 1. ओके, दे आस्क मी सर मैं वैदिक मैथ्स कराऊं, आई मैथ्स कराऊं, क्यू मैथ कराऊं, what? See, ideally, I assume parents, 19.99%, I am not wrong. They are literate parents. Okay, they know what are numbers, they know what are languages, how to use them. Okay, they can teach themselves. Okay, no need to. If you need any help, you can let me know. I'll give you the worksheet. If I have to prepare, I'll show you some of the worksheet. It is very useful, very catchy. So they will like it, right? Otherwise, you don't require any personal classes for this kind of thing. If you want, there are certain batches. Although I'm parents have requested me, but I have not started with any of this. They say, "Okay, sir, teach parents." Okay, and they will teach because my classes are usually online. So that is why this kind of session I keep on taking. Okay. Now, if you have this kind of option available, they don't know what to do. And many a times, the calls are received from the mothers. सर मैं मैथ्स में बहुत वीक थी, मेरा मैथ्स मेरा फियर है, ठीक है, तो आई डोंट वांट माय चाइल्ड. दिस इज 90% ऑफ केसेस में दे टेक, और 10% ऑफ केसेस में पीपल से कि सर आई एम वेरी गुड एट मैथ्स
and I want my child to be equally good or better than me in math. Even fathers also called me for the same thing. And father usually, usual understanding, sir, I know maths is a math life skill, and I want my child to be good in maths. पिक्चर से बाहर So जा रहा I है want खाने। one minute. Huh? कहाँ से आवाज आ रहा हाँ। है? Okay. Okay. I'm keeping everything on a mute. Okay. So now, if you are unmuting, if you want to ask your question, if you have any doubt, don't unmute. You can raise your hand, or you can raise your hand. I'll call you in between. Right? So nursery, junior KG, senior KG, grade one. Grade one is still better. I have conducted 2, 3 batches for grade one short courses, and it was very successful. ठीक है, and people know exactly how the addition, subtraction, multiplication works. I can't introduce division at that time, but multiplication I can introduce. And believe me, grade one student know from table 1 to 10 very fluently. Whereas there are certain techniques which I give you today also. Any parent who are in grade 1 or grade 2 and they have struggling with tables, okay, I give some worksheet, I teach them what to do it absolutely free. There is no charge for it. And if you want as many as worksheet, I will keep on giving you. Only thing is you have to follow my instruction without applying your mind. Okay. And regularly consistency will you get the results. Okay, this is what actually base. Now, if you ask me anything, anybody thinks here, okay, sir, without writing or without showing steps, it is no use of doing maths because school में ऐसा requirement है. School में they want the right, they want the method, they want steps to be done. Okay, anybody thinks of this level, and there are some set of people they say कि sir mentally अगर करना चाहे, if my child is doing mental math, oral math, okay, verbal math, आई एम हैप्पी, आई एम वेरी हैप्पी. ठीक है, एक बोलेगा सर मेरा बच्चा बहुत अच्छे से राइट करता है, स्टेप लिखता है, प्रॉपर लिखता है. ठीक है, एवरीथिंग वेरी गुड प्रेजेंटेशन और सिस्टमेटिक राइटिंग है, बट एवरी क्वेश्चन वो राइट करके करता है. देर आर टू सेट्स ऑफ माइंडसेट. Anybody of these people who are in this, you can call up, okay, what exactly you are voting. I just keep ticking on. You tell me which you think it is better. Whatever it may be right, there is nothing called as right or wrong. There is something, a mindset. Okay. अब बताइए क्या हो सकता है? Anybody? Quick, quick, quick. There are more than 30, 34. Yeah, tell me, Kinjal ma'am. You can open your mic. Mental and more oral maths, according to Okay, me. chalo, I got one vote here. One vote here. Anybody? Quick, quickly. आप करो, कोई कोई प्रॉब्लम है. See, if you are not paying attention here, okay, there is no point in attending this session, right? And अगर आपको ये लग रहा है कि at the end of the session में कुछ लॉन्च करूंगा या कुछ करूंगा, ऐसा कुछ नहीं होने वाला. ठीक है, if you are thinking something like this, there will be a separate session taken where I'll call the kids with the different grades. I have taken from nursery to grade 10. सारे जन यहाँ पे है. ठीक है, if you think कि इसके बाद में कुछ लॉन्च होगा, वो कुछ नहीं होने वाला. ठीक है, there is no launch of the any of this mental mess. मोहम्मद सर, ठीक है. Anybody else? It There's has to be oral. I think oral would be the best way. नाम मैम आपका? Sarika. सारिका, वेरी गुड, ठीक है. चलो, एनीबडी एल्स? ओके. नाउ, इन माय ओपिनियन बोथ आर इंपॉर्टेंट, राइट? इफ आई वांट टू ग्रेड दिस, नाउ व्हाट इज द एडवांटेज, व्हाट इज द डिसएडवांटेज, आई विल टेल यू बोथ ऑफ दैम, राइट? नाउ मेनी पेरेंट्स कंप्लेन, सर वो मेंटल बहुत ज्यादा करता है मेरा बच्चा, या माय डॉटर इज डूइंग टू मच ऑफ मेंटल मैथ्स, स्कूल में प्रॉब्लम आता है. ठीक है, सो कोई प्रॉब्लम नहीं. आई रिक्वेस्ट एवरी वन, ओके, what is the advantage in mental maths, oral maths? You can do, numbers are very high, the practice is very good because kid has to quickly clear. And आप देखो कितनी बार अगर आप मेंटल मैथ्स करो, अपना बजट बनाते हो, अपने स्कूल में जाते हो, अपना व्हेन यू गो टू शॉपिंग और एनीवेयर, ओके, अब तो चले कंप्यूटराइज हो गए, लेकिन व्हेन यू गो टू लोकल वेजिटेबल मार्केट और अ फ्रूट मार्केट, व्हेन यू बाय, वो बोलता है सर पाव किलो का ये, आधा किलो ये, 1 किलो ये, एंड इफ यू वांट टू बाय 400 400 ग्राम, वो कितना फास्ट कैलकुलेट करता है वहां पे. उसको समझ में आता है कि उसको क्या कैलकुलेट करना है, उसका कितना पैसा लेना है, राइट? डू ही राइट एनीथिंग ऑन दिस
स्कूल इफ यू नीड मार्क्स देन राइट अ प्रॉपर स्टेप बट प्रैक्टिस मेंटल इज बेस्ट, वेरी गुड, ठीक है। ये किसका आया है? जीके का, ठीक है, जनरल नॉलेज। जीके मैम और सर, आई डोंट नो वो है, ठीक है। उन्होंने लिखा है कि स्कूल में राइटिंग चाहिए, स्कूल में मार्क्स चाहिए तो राइटिंग चाहिए, वेरी गुड। दैट इज वाई से कि बोथ आर इंपॉर्टेंट, राइट? बिकॉज समटाइम्स पीपल जज और पेरेंट्स वांट मार्क्स, दे डोंट वांट नॉलेज, ठीक है। बहुत होता है ये कि सर स्कूल में नहीं आया, ऐसा नहीं आया, ऐसा कि लुक एट द कैपेसिटी ऑफ द स्टूडेंट, व्हाट एक्चुअली योर चाइल्ड इज डूइंग, हाउ ही और शी इज परफॉर्मिंग, दैट इज मोर इंपॉर्टेंट रादर देन व्हाट इज द नॉलेज। ओके, सो यू शुड रादर टेस्ट द नॉलेज rather than doing, and for that also I'll tell you what you should do, right? Now yes, writing is important. Suppose you want to do 100 sums for any operation, I say ke let's 100 sum for addition, which is very simple. If you tell the word problem, 100 word problem, and this time of chat gpt or claude or something like this, honestly I'm telling, in not best of my interest, ठीक है, क्योंकि मेरा बिजनेस है ये, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ कि इफ यू एबल टू, स्मार्ट पेरेंट्स आर देयर, यू डोंट रिक्वायर एनी टीचर एटलीस्ट फॉर द प्रैक्टिस, राइट? वर्कशीट में देता हूँ बहुत जगह पे, लेकिन यू डोंट रिक्वायर एनीथिंग, या यू हैव टू वेरी स्पेसिफिक। आप चैट जीपीटी पे जाओ, क्लाउड पे जाओ, एनी एआई जाओ, जेमिनी पे जाओ, ठीक है। थोड़ा सा आपको एफर्ट डालना पड़ेगा, बट आपको इंटरनेट पे इतनी सारी चीजें मिल जाएगा ना, आई बिलीव, आई टेल यू, एनी ईयर you'll get number of things which you will not be able to complete for your kid, right? बहुत सारी चीजें फ्रीली अवेलेबल है, ठीक है। इट विल नॉट बी पॉसिबल फॉर यू और योर किड टू कंप्लीट इट। सो इफ यू वांट टू डू 100 सम्स, आई रेकमेंड 10 सम्स आप यहाँ पे करो। इफ यू वांट टू डू दिस 100 सम लाइक दिस, even if you take writing for 2 minutes, which is bare minimum 2 to 3 minutes, it will take you 300 minutes, विच इज नियरली 5 hours, राइट? ये एक ऑपरेशन का बोल रहा हूँ, ठीक है। दिस इज द फास्टेस्ट स्पीड एनीबडी कैन डू, एनी चाइल्ड कैन डू ऑफ एनी एज with this word problem, writing the steps. Okay, I done this, I bought pencil, I bought erasers, plus addition I bought this, I bought 3 pencils, 5 erasers, total ये हो गया, and then I write, and then I get it. Earliest they can do it in 2 to 3 minutes, right? But if you ask them orally, they will do it in 30 seconds, right? So if you want to do this, what I recommend is take this 10% of it, right? Keep 10, 12, 15 questions on this, okay, and rest 90% you can do mentally. Now, how many of you prepare a child for competitive exams? How many of you prepare your child for the competitive exams? IMO, IPM, very good. Karishma ma'am, right? Me, very good. ठीक है। नाउ दोज हु आर नॉट प्रिपेयरिंग, दोज हु आर इन वेरी अर्ली एज, जो 9-10 में है उसको दे मिस द बस, ठीक है। अगर उन्होंने किया है तो वेरी गुड है, अगर नहीं किया तो यू प्रिपेयर इट wherever it is available, ठीक है। द कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स आर डन फ्रॉम वेरी लो लेवल, फ्रॉम एसओएफ वर्ल्ड है, ठीक है। दे टेक इट फ्रॉम द वेरी जूनियर लेवल, ठीक है, वहां से भी चालू कर सकते हो आप, ठीक है। बट सर्च फॉर सम गुड एग्जाम्स ऑफ मेंटल मैथ्स और योर वैदिक मैथ्स और एनीथिंग। वैदिक मैथ्स का तो कुछ है नहीं, बट अदरवाइज कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स आर देयर। इट इज फॉर मैथ्स, इट इज फॉर जनरल नॉलेज, इट इज फॉर इंग्लिश। माई चाइल्ड इज ग्रेड 2 सर एंड प्लानिंग टू गिव आईपीएम। यस, वेरी गुड मैम, आई एम कमिंग टू आईपीएम, ठीक है। आईपीएम इज वन ऑफ माय फेवरेट, वाई आईपीएम है, सिल्वर जोन है, दे आर माय वन ऑफ फेवरेट्स, ओके। नाउ दोज हु आर प्लानिंग टू, एक होता है कि सर मेंटल मैथ्स पढ़ाए, मेंटल मैथ्स कहाँ पे अप्लाई करें, राइट? एक तो मैथ्स इज अ लाइफ स्किल। मैं यूजुअली एक कोट बोलता हूँ, ठीक है, मैं बहुत बार पेरेंट में, यूजुअली मैं हर एक इसके अंदर हर एक सेशन में बोलता हूँ, ठीक है। नाउ एवरीबडी इज अ पेरेंट हियर, इंक्लूडिंग मी, ठीक है। आपके बच्चे के लाइफ में एलआईसी का एक कोट है, जिंदगी के साथ भी जिंदगी के बाद भी। मैथ्स का कोड उससे ऊपर है, ठीक है। अगर आप मेरा कार्ड देखोगे तो उसके अंदर मैंने लिखा हुआ है, ठीक है। आई हैव रिटन 2-3 कोट्स देयर, 2-3 टैगलाइंस, ओके। मैथ्स इज द ओनली यूनिवर्सल लैंग्वेज, ठीक है। मैथ्स डजंट रिक्वायर एनीथिंग, लैंग्वेज बैरियर है ही नहीं मैथ्स के अंदर, राइट? इफ यू गो हियर, ऑल आर 1 to 10, 100,000, सब जगह पे सब कुछ सेम चल रहा है। इंटरनेशनल, इंडियन में कुछ रहा है, उसको लिखना अलग है, बट कैलकुलेशन गोज द सेम वे। देयर इज नो लैंग्वेज बैरियर इन मैथ। तो मैथ्स इज बेसिकली वेरेवर यू गो, इट हैज टू बी रिक्वायर्ड। सेकेंडली, माई कोट ऑफ मैथ्स इज दिस, ठीक है। माई कोट इज मैथ इज दिस, जिंदगी के पहले भी जिंदगी के बाद भी, ठीक है।
before even the child was born, okay, the mass is already in that life. सोनोग्राफी में आपको बताया जाता है कि आपके बच्चे का हाइट इतना है, उसका हार्ट इतना है, हार्ट पल्स इतना है, आपका ये है वो है, सब कुछ आपको समझाया जाता है, राइट? सो इवन द वेट और द हाइट और द वट एवर इज देयर मेजरमेंट्स ऑल गिवन टू यू इन द टर्म्स ऑफ 700. Within 3 months of a pregnancy, the child, you know exactly what my child measurements are. Yes, Krishna ma'am, tell me. Karishma ma'am, sorry. Yes, sir, I actually missed your discussion on the IPMs. Why I missed that? I have So, not taken IPM yet. अच्छा, okay. IPM में बहुत डिटेल में लूंगा, डोंट वरी. Okay, because I have enrolled my child who is in sixth now for a IPM, वेरी गुड. and the younger one who is in first standard for the Olympiad. ओके. So या I IPM just सेकंड wanted to चालू होता है. so I wanted to understand, and again she's also doing the abacus. So now it's all confusion. Which one is so? All the आपका आप experiments I have अकेले नहीं हो done with मैम. my elder one. You are not alone. There are so many parents are there. That is why I Yeah, conduct this kind of session every year, and this mm, is absolutely free. मतलब I am doing for more than 2 decades now. yeah, But ऑनलाइन because नहीं है, पहले मैं ऑफलाइन लेता था. बट correct. आफ्टर कोविड, थैंक्स टू कोविड, पिछले 7-8 साल से मैं पूरा ऑनलाइन लेता हूँ. अदरवाइज टू क्लियर अर्लियर ऑल्सो ऑनलाइन बिफोर कोविड, बट Okay, प्रेजेंस वॉज वेरी लो. ठीक है, okay, मतलब 2 3 4 okay, पेरेंट आते थे, दोज हु आर टेक से भी. अदरवाइज कोई नहीं आता था. बट ऑफलाइन में देवर लॉट ऑफ पीपल यूज टू कम. बट ऑफलाइन में एक रिक्वायरमेंट रिस्ट्रिक्शन ही होता है, एरिया का रिस्ट्रिक्शन है. मतलब इफ आई yeah, सपोज somebody you are staying at Goregaon or maybe South Bombay or somebody at Pune, and if I call them at Borivali or maybe Dadar, ठीक है, only restricted people will be able to come. ठीक है. सो correct, correct. ट्रैवल इज द मेन इशू. इसका सबसे प्रॉब्लम है, आप एक बाजू खाना बना रहे हो, ब्रेकफास्ट आपका चल रहा है, आप यहाँ पे सुन रहे हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है. ठीक है. सो Correct, ऑनलाइन हैज correct. बिकम वेरी कंफर्टेबल. आई एम वेरी कंफर्टेबल. आई वाज इन आईटी अर्लियर फॉर 20 years. सो आई एम वेरी हैप्पी एंड आई एम कंफर्टेबल. मतलब जिससे जब वीसी किसी ने सुना भी नहीं था, ठीक है, इतना वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करते 2001 में. वी हैड अ यूएस क्लाइंट एंड यूके क्लाइंट. सो इट इज वेरी कंफर्टेबल. टेक्नोलॉजी हैज इवॉल्व एंड यू शुड यूज टेक्नोलॉजी. दैट इज Yeah, माई yeah, व्यू. मतलब yeah, देर आर लॉट ऑफ, सी आई एम नॉट अगेंस्ट क्लासरूम ट्रेनिंग्स, ठीक है, बट बहुत हैसल है. मतलब आपका, जैसे मैम ने बताया कि आपका एक बच्चा फर्स्ट में, एक चार का सिक्स में है, ठीक है, 5 years गैप. ओके. इफ यू वांट टू गो एंड ड्रॉप योर चाइल्ड फॉर नॉट इवन एकेडमिक्स, ठीक है, बाकी सबके लिए तो ऑफलाइन जाना पड़ेगा, लेकिन एकेडमिक्स को छोड़ के आपको ड्रॉप करना, ड्रॉप पिकअप ये वो, एंड अनफॉर्चुनेटली कभी आपका जो वेन्यू है और जो लोकेशन है विच इज अराउंड 5 kilometers अवे, तो आप जाओगे और आओगे, फिर जाओगे फिर आओगे, आपका 3 घंटा 2 घंटा इसमें निकल जाएगा. तो yeah. देर इज नो ऑप्शन बाय No, I can अदर. teach everything online, but I don't want to experiment. I don't want to try all the experiments with the younger one now. All I've done with the elder one. So Yeah, yeah. now finally I'm with the settle with the IPM No, which if you see, I have all grades batches. Okay, if you want to try one of the grades, you let me know. I'll add you into the group. You can attend 1 or 2 sessions. You see, or my YouTube channel is there. If you don't want to attend, my YouTube channel is there. You can teach them for free. ठीक है, so मैं यूट्यूब चैनल है, फ्री है. हर एक ग्रेड का मैंने प्रॉपरली, आई हैव मेड दिस. आई मीन नाउ लेटेस्ट सेशन यू विल नॉट बी एबल टू गेट इट, बट हाँ, यू विल नॉट गेट द वर्कशीट देयर, बट यू विल गेट ऑल द टेक्निक्स हाउ टू डू इट, व्हाट टू डू इट. वहाँ पे मैंने प्रॉपरली आईपीएम के लिए या फिर कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स के लिए आई क्रिएटेड सेपरेट फॉर ग्रेड 6, ग्रेड 5, ग्रेड 3, ग्रेड 2, ग्रेड 1. सब कुछ मैंने बनाया अलग अलग. राइट, देयर इज अ सेपरेट वॉच लिस्ट, सेपरेट प्ले लिस्ट फॉर दैट. एंड देयर इज अ डेट वाइज ऑल्सो, यू कैन से फ्रैक्शन वैक्शन, या जहाँ पे आपके पास चैप्टर है, डेट है, सब कुछ मेंशन है. सो इफ यू वांट टू डू दिस, यू कैन गो एंड चेक व्हाट एग्जैक्टली यू वांट टू डू इट. सो यू विल नो कि हाउ माई क्लासेस आर कंडक्टेड, लाइक हाउ आई एम डूइंग करंटली. यू विल नॉट बी एबल टू सी एनी वन, राइट, आपको बच्चे नहीं दिखेंगे, बट यू विल बी एबल टू हियर द साउंड. माई यूजल क्लासेस आर इंटरेक्टिव एंड इट इज मैंडेटरी फॉर देम टू कीप द वीडियो ऑन एंड माइक ऑन. सो वो बोलते हैं, और बहुत में तो देखोगे तो बच्चे बहुत ज्यादा इंटरेक्टिव होते हैं. मोस्ट ऑफ द सेशंस बच्चे बहुत ज्यादा इंटरेक्टिव होते हैं, एंड देयर इज अ मैंडेटरी थिंग इन माई क्लास, दे हैव टू रेज देयर हैंड. इफ आई आस्क यू, आई वांट टू आस्क सम क्वेश्चन, हु वांट्स टू आंसर, दे मैंडेटरली हैव टू रेज देयर हैंड. वो ट्रेनिंग उनको पहले से दी गई है. इवन इफ दे डोंट नो द क्वेश्चन, इवन इफ दे डोंट नो द आंसर. और एक आंसर सबसे सिंपल होता है, आई डोंट नो. आई सेड कि इफ यू डोंट नो द आंसर, यू आर हियर फॉर लर्निंग, यू शुड से आई डोंट नो विद इन 30 सेकेंड, विद इन 10 सेकेंड रादर. ठीक है, आप 10 सेकेंड बोल दो कि मेरे को नहीं आता है, विच इज फाइन. ठीक है. सो यस, विल कम टू द कॉम्पिटिटिव, बट बिफोर दैट इफ यू एनीबडी हैज अ वैदिक मैथ्स का डाउट, समथिंग लाइक दिस, विल टेक इट नाउ.
See, Sir, in one Vedic maths, where I am going to use it. So mental maths is, yes, absolutely Vedic maths, mental maths is very, very important. I usually recommend, आई डोंट डू एनीथिंग बाय राइटिंग, ठीक है, जब तक आप मेंटली नहीं कर सकते हो, ठीक है, यू आर नॉट गुड एट मैथ्स, ये मेरा बिलीफ है, ठीक है, आई मे बी रॉन्ग 100%, समबडी से इसका सब राइट करके करोगे तो होगा, बट ये मेरा बिलीफ है, यू कैन डिफर टू हैव ओपिनियन अदर देन मी, यस फॉर स्कूल एग्जाम यू रिक्वायर, बट अगर आपका स्कूल एग्जाम, I'll tell you my opinion. Suppose you come and talk to me. My child is in grade 4, grade 5, grade 6, grade 7. ठीक है सर, वो कंसिस्टेंटली ना 80% से ऊपर ला रहा है या 90% से ऊपर ला रहा है और मे बी 95% से ऊपर ला रहा है, ठीक है, डिपेंडिंग ऑन द ग्रेड। ओके, हायर ग्रेड फिर भी काफी कंसिस्टेंट होता है उनका, और बोर्ड के ऊपर भी डिपेंड करता है काफी। बट इफ यू टेल मी कि सर माय चाइल्ड इज कंसिस्टेंटली स्कोरिंग दिस, I may not be 100% sure to tell you how good your child is in maths. That is first thing. Although their distinction carrier in every exam they are conducting, right? Because स्कूल एग्जाम थोड़ा सा बुकिश नॉलेज होता है, थोड़ा सा एप्लीकेशन कम होता है वहां पे, बट इफ यू टेल मी सर माय चाइल्ड इज गोइंग कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, now this competition can be anything, IMO, IPM, Karkares, your silver zone, mental math Singapore, सिग्मा सिस्मा, बहुत सारे हैं, देर आर सो मेनी ऑफ देम, लॉजिक क्विज है, एंड एवरीबडी हैज देयर ओन पैटर्न, एंड more or less all are good. There are some exceptionally well like Silver Zone and IPM, but they are good for excellent maths learners. मतलब जो मैथ्स जिसका पैशन है ना, उसके लिए बहुत अच्छा होता है ये, राइट? अदरवाइज एवरेज के लिए दे विल बी एबल टू, दे नीड प्रैक्टिस मोर, बट वो के लिए दे विल फाइंड लिटिल डिफिकल्ट, बट स्टिल आई रेकमेंड एटलीस्ट एटलीस्ट you should try for two, any competitive exam, any exam, two exam you should try. More is better, but at least two you should try. ठीक है, इससे फायदा क्या होगा, यू विल बी एबल टू कैच, सबसे बड़ा बेनिफिट कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ये होता है कि दे विल रन अगेंस्ट द टाइम। अगर आपको बच्चा अच्छा है, he or she will be able to complete the whole paper of 30, 40, 50 questions, whatever they are, different questions, different exams are different type of counting. Okay, they will be depending on the grade, depending on the exam. But if you give me, suppose they given 1 hour, usually it is 1 hour, right? आपका बच्चा उसको खत्म कर देगा, but उसको maybe it will take 1.5 hours or 2 hours, उसका फायदा नहीं है। बिकॉज वेन यू गो एंड चेक दैट, सर मैंने तो पूरे प्रैक्टिस कराए थे, मैंने इतने पेपर प्रैक्टिस कराए उनको, ठीक है, कि सर वो पूरे प्रैक्टिस है सब कुछ, एवरी पेपर 80, 90, 100% आता है उसका, बट व्हाट अबाउट द टाइम, दे यूजुअली मैन लीव द टाइम, टाइम मैनेजमेंट नहीं होता उनसे, एंड दे डोंट नो व्हाट टू डू इट, दे गो सिक्वेंशियली, देयर आर सो मेनी ट्रिक्स व्हाट यू कैन डू इट, इफ यू वांट टू डिस्कस विल डिस्कस दैट एज वेल, कि आपको कैसे करना है। आईपीएम के ऊपर तो मैंने बहुत सारे सेशंस मैंने लिए हुए हैं, किड्स के भी, किड्स के सेशन है, मैंने बहुत सारे वायरल भी किए, मतलब आई पुट इट ऑन द यूट्यूब, आई पुट इट स्पेसिफिकली ऑन टू एवरी ग्रुप, ऑल्दो दे आर नॉट माई यूट्यूब चैनल सब्सक्राइबर या फिर वो नहीं है, स्टिल आई पुट इट ऑन लॉट ऑफ ग्रुप्स वेर एवर आई कैन रीच, एंड दे आर ऑल फ्री सेशंस। मेरे लाइव सेशन मैंने डाले हुए हैं बहुत बार कि दिस इज वन थिंग यू शुड, दिस सेशन इज वेरी गुड, यू शुड लुक फॉर दिस, ठीक है, सो दैट वे दे विल नॉट बी एबल टू डू इट इन टाइम। सबसे बड़ा प्रॉब्लम है वन कॉमोडिटी विच वी डोंट हैव और वी कैनॉट रीयूज, विच इज टाइम, ठीक है, आपके पास वो टाइम यूज नहीं कर सकते हो वापस, जो चला गया। आई वॉन्ट टू बी गिव लॉट ऑफ एग्जाम्स नाउ, बट अभी मैं नहीं दे सकता बिकॉज आई पास दैट एज। सो आपका एज जब पास हो जाएगा तो आपको उसके बाद कुछ नहीं मिलेगा, एंड बिलीव मी वॉट यू कैन डू, ठीक है, बेस्ट फॉर योर चाइल्ड इज इन्वेस्ट इन दैम, ठीक है, wherever you get the best quality you should always invest, well you say you buy the best house, you buy best car, you have facility, these are all accessories, right? This is important, but what you invest in your child for knowledge for this thing, because they are going to be in age जहाँ पे manual work almost खत्म हो जाएगा। I sent one video yesterday, ठीक है, एक रील मैंने भेजी इंस्टाग्राम की रील, ठीक है, बहुत सारी रील्स में ऐसे देखता हूँ नॉलेज से, तो उसने बड़ा अच्छा बताया कि आपके बच्चे को सीखना आता है, एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन सब कुछ आता है, ठीक है, आपको जो सिखाना है उसको अप्रोच सिखाना है कि हाउ टू अप्लाई, हाउ टू अप्रोच, हाउ टू डील,
आपको कैसे लोगों के साथ बिहेव करना है, आपको कैसे टीम में, आपको हाउ टू डू इट, दैट इज व्हाट एग्जैक्टली प्राइस इज मोर इम्पोर्टेंट, राइट। ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट है, बट यहाँ पे अगर आपके पास नहीं आए, कॉन्फिडेंस बिल्ड नहीं होगा उसका। सो बेस्ट थिंग इज, आई यूजुअली रेकमेंड एंड आई वी डू इट। मतलब मैं पर्सनली, मेरे पर्सनल लर्निंग के लिए, आई एम 50+, my wife is 50 plus, we both are 50 plus, we still invest minimum 3 to 4 lakhs per head every year for learning something the other, online है, offline है, marketing है, ये है, वो है, anything, whether we apply, we don't apply, we keep on learning certain things which is it will definitely use, right। ये हमारा बजट है जो हम यूज करते हैं। सिमिलरली वी टेक इट फॉर द ऑनलाइन कॉर्पोरेट इवेंट्स, माय बोथ डॉटर्स वी टेक देम, ठीक है। मतलब उसका फीस एक सेशन का 5,000 के करीब होता है, ठीक है। 5,000 से 10,000, कभी कभी 20,000 तक भी होता है। तो वी टेक देम अलोंग वेन एवर दे आर कंफर्टेबल, उनके जो वहाँ पे टाइम आता है, तो वी टेक इट। बट इट इज समथिंग दे विल नो एंड इंटरेक्ट, दे विल बिकम कॉन्फिडेंट हाउ टू डील विद दिस। नाउ somebody don't know, I don't know about MMI, मिलेनियम माइंडसेट इंसेंटिव, सक्सेस ज्ञान का है। ओके, माय डॉटर वेंस देयर, ठीक है। मेरे दोनों डॉटर को हमने लेके गए थे। यंगर वन को तो इतना अच्छा लगा वो, एंड शी वाज जस्ट 18 व्हेन वी फर्स्ट इंट्रोड्यूस देम। 18 या 17 थी तभी, नॉट इवन 18, नाउ शी इज 20+। बट जब हमने इंट्रोड्यूस किया था उसको कि चलो एक बार देखे जाते हैं उसको, एंड शी एंजॉयड अ लॉट। उससे अपने वीडियोस बनाए, अपने वीडियो बना के उसके जो ओनर थे उसको भेजा, उसके साथ डिस्कशन किया, उसके साथ बात किया। उसकी वीडियो उसने एमएमआई के प्लेटफॉर्म डाला कि दिस इज समथिंग यंग गर्ल विच इज कमिंग। एक कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है कि how to deal with these people. So that is certain things which you should always invest in your child, not academically also and otherwise also. You should keep on investing. आपको लगता है बहुत छोटा है ऐसा है, and that is the thing what exactly you make a parent make a mistake. Earlier you introduce them to a lot of things. Give them challenging work. लोग बोलते हैं ना मेरा बच्चा ना सर वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम नहीं कर पाएगा। क्यों नहीं कर पाएगा? आप इंट्रोड्यूस ही नहीं करोगे उसको। हाँ, आप उसको जंग में डालने से पहले ही हार से स्वीकार करने को सिखाते हो। व्हेन यू से कि आई डोंट वांट माय चाइल्ड टू डू इट कॉम्पिटिटिव एग्जाम, आप उसको जंग में भेजने से पहले ही आप उसको फेल कर रहे हो। आपने हार स्वीकार कर लिया है, विच यू शुड नेवर डू। यू शुड पुट योर एफर्ट, एंड बिलीव मी, इफ यू पुट योर एफर्ट फॉर प्रिपेयरिंग योर चाइल्ड फॉर एनीथिंग consistently, be it a language, be it general knowledge, be it science, be it maths, anything you do it, it does not go in vain। आपको कहाँ ना कहाँ आपका बच्चा रजिस्टर करता है उसको, कहाँ ना कहाँ यूज करता है उसको। 100% देर इज एब्सोल्युटली गेन। वो गेन 1% है या 100% है, वो अलग बात है, बट 100% गेन करेगा। आपको सिर्फ ये देखना है उसका इंटरेस्ट कैसे क्रिएट करें, हाउ टू क्रिएट एन इंटरेस्ट। आई शो सम ऑफ द हाईलाइट्स व्हाट वी हैव डन, व्हाट आई हैव डन फॉर माय students। Every year I introduce some or the other new kid, new concept. Okay, it works very well. Now this time I've done a very big change, very big change. Okay, I have done something like this. I'll be giving 20% of his refund as a reward. Okay, and this goes to the child, just go to student, not to the parent. And I insist, I speak to parent, just give them, make them money management aware. Okay, what exactly they are doing, right? उनको थोड़ा सा and let them spend their amount, एक्सेप्ट नॉट ऑन द गैजेट्स। आपके पास एक रिस्ट्रिक्शन है, गैजेट मत उसको रिस्ट्रिक्ट करो। अदरवाइज आपको जो लेना है, आपको टॉय देना है, आपको इफ यू वांट टू बाय एनीथिंग विच एवर दे लाइक, क्लोथ्स और समथिंग लाइक दिस, दे वांट टू बाय गिफ्ट फॉर देयर फ्रेंड्स, लेट देम स्पेंड एट द अमाउंट, राइट। कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, बट आई विल शो यू सम ऑफ द थिंग्स विच यू वांट। सो बेसिकली व्हाट आई एम कमिंग बैक टू दिस, मेंटल मैथ इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अर्लियर यू इंट्रोड्यूस, ठीक है, better it is। Now, something, anybody, okay, can anybody tell me on the chat or usually open the mic, those who are active will focus on that, okay। आप अपने बच्चे का ग्रेड बताइए मेरे को, तो अकॉर्डिंगली आई टेक इट। अगर जूनियर के जी, सीनियर के जी, या ऐसा है, या फोर्थ फिफ्थ सिक्स है, मिडिल एज है, या 9th 10th है, आप मेरे को ग्रेड बताइए। 2 है। ओके, ग्रेड 2, नेक्स्ट, फटाफट बताइए। 4.5 years old. हाँ, ओके, फोर्थ में, एक फोर्थ में है, 4.5 years है, मतलब अभी तो जूनियर के जी में होगा। ग्रेड 5। ग्रेड 5, ग्रेड 4, ग्रेड 3, ग्रेड 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 5, 5। Grade 5. वेरी गुड, ठीक है। फाइव, ग्रेड 3, ग्रेड 5। वेरी गुड, मैं Grade एक्सपेक्ट, 4. वेरी गुड, सो ग्रेड मेरा 5। एक्सपेक्ट, वेरी गुड। सो ग्रेड 4, ग्रेड 5 मेजर है, ठीक है। 4.5 का एक है सर, आपका बच्चा अभी तो जूनियर केजी में होगा शायद, जूनियर। होम स्कूलिंग है सर। अच्छा, होम स्कूल, वेरी नाइस सर, वेरी गुड,
Excellent, sir. I'll sell it to you. बहुत अच्छा डिसीजन है. And you are planning to do homeschooling for a very long time? Yes, at least until she doesn't say that she wants to go for a formal school or something. Very good. Where are you from, sir? I am very happy. Can I know your name? My name is Dhaval Sarvaiya. I am from Mumbai. We are currently in Oman. Acha, very nice, very nice. Sir, if you want, I'll connect you some of the homeschooler who has done homeschooling. You let me know. Okay, I'll introduce Sure, you some sure. of the parents who are done homeschooling and they are actually beyond 10th. Oh, wow. Okay, so मैं Sure, आपको sir. We would like to get introduced, sir. definitely Thank you. I'll Thank connect you. you to them. I am very happy that you are doing so. ठीक है, I am very happy. Thank you, sir. So it is very good option. मैं तो ना स्कूल तो ये एजुकेशन इज माफिया है. मेडिकल के बाद सेकंड माफिया एजुकेशन है. ठीक है, ऑल दो आई मीन टू दिस सेक्शन दिस बिजनेस, बट मैं खुला बोलता हूँ इट इज एजुकेशन इज अ माफिया. ठीक है, इतना बड़ा. Likewise, sir. I'm working with a college since past 3 years, ओके, and that's why I've realized it. करेक्ट, थैंक यू. सो ये जब अंदर ना वो हम बोलते हैं ना, जब कीचड़ में गिरोगे तब समझ में आएगा कि अंदर क्या गंदगी है. ठीक है. Uh, सो इट हैपेंस. सो बट वी आर पार्ट ऑफ द सिस्टम, वी कैन नॉट चेंज इट. So sure. eventually, but I usually defend. That is why I take some sessions and I promote parents to teach their child on their own. जितना हो सकता है आप ये करो. That will help them a lot. Because parent के पास जो age है, parent के पास जो flexibility है. I tell you my own experience. ठीक है. When I shifted this house, when I am sitting here, we shifted before 14 years, right? In 2000 somewhere 12. ठीक है. जब मेरी डॉटर अभी 20 साल की, 6 साल की थी, तभी 5-6 साल की थी, तो वी हैड अ सेपरेट रूम. जो अभी मैं ले रहा हूँ मेरी डॉटर का रूम है. ठीक है. सो ये जो सेशन में जहाँ से ले रहा हूँ, तो देन शी सेड के सर पापा मेरे को नींद नहीं आती. मेरी वाइफ को बोला, मेरी वाइफ बोली मैं नहीं आऊंगी. पापा को जो पापा आते तो तेरे साथ सोएंगे. एंड शी वॉज वेरी अफ्रेड बिकॉज अर्लियर वी वाज टू सिट इन ए सिंगल रूम. एक ही बेड पे हम चारों जन सोते थे, तो हमको लगता था कि उसको वेरी कंफर्टेबल, पहले से पैदा हुई वही आदत थी. सडनली एकदम नया रूम आ गया तो मतलब दीदी है ना साथ में, दीदी के प्रॉब्लम नहीं. तो बोला नहीं नहीं पापा, फिर भी मेरे को डर लगता है, दीदी सो जाती है एंड दिस थिंग समथिंग, दीदी जल्दी सो जाती है एंड ऑल दैट. आई सेड ओके आई विल कम. देन वी मेड अ प्लान कि ठीक है. एंड शी वाज अराउंड 7-8 ईयर्स तक था जब ये थोड़ा स्टार्टिंग स्टार्टिंग में, बिकॉज हमको शिफ्ट करने की 1 साल लग गया. ठीक है. सो आई सेड कि ओके आई हैव मेंटल मैथ्स बुक. ठीक है. तो हम करेंगे हाफ एन आवर 45 मिनट, वॉट एवर यू थिंक विल डू इट. एंड देन विल प्ले लूडो एंड आई स्लीप. ओके, जब तक वो सोएगी नहीं तब तक मैं वहां रहूंगा. एंड मैनी टाइम बहुत लेट हो जाता, मैं सो जाता था वहीं पे. ठीक है, बिकॉज वी आर टायर्ड. समटाइम मैं भी पूरा काम करके थक जाता था. बट तो उसका डर का आई टेक ए बेनिफिट. वी यूज्ड टू स्टार्ट एट 10 और मे बी 11 PM. हम रात को 12-1 बजे तक हम पढ़ते थे. तो पेरेंट्स का व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू इज, if you even put any teacher, they have a restricted time slot. 5 to 7, okay, 2 to 3, 4 to 8, 4 to 6, something like this, right? 1-1.5 घंटे 2 घंटे का उनका पीरियड होता है. आपका एडवांटेज है, आपका बच्चा जब भी मूड में हो तब आप उसको पढ़ा सकते हो. एंड आई हैव डन मल्टीपल टाइम्स, मतलब थ्रू आउट देयर ईयर. जब भी आया था, मैं हम घूमने जाए, कार चला रहा हूं, तो मैं बोल रहा हूँ नंबर प्लेट पढ़ो. ठीक है. रीड करो द नेम्स ऑफ द शॉप, उसमें चेक करो कौन सा एरिया है, कौन सा क्या है, कहाँ पे जा रहे हैं हम, क्या है, what is this. So keep on keeping that, keep them busy, right? There are a lot of things what is shopping में. जब जाते डीमार्ट में, we used to go earlier. ठीक है, डीमार्ट में गया, हाइपर सिटी में चले गए, मॉल में चले गए, बिकॉज वी यूज्ड टू ग्रोसरी शॉपिंग, वो सारी चीजें होती है तब, ऑनलाइन नहीं था बहुत सारी चीजें. आई यूज्ड टू शॉप, बोला तेरे को 300 रुपया ले, 200 रुपया ले, बाय वॉट एवर यू वॉन्ट टू बाय फॉर योर सेल्फ, राइट. तो दे यूज्ड टू गो. मेरे आई को सेड ज्यादा ठीक है अर्जुन के साथ. सॉरी. Okay. Then what I used to do is, when I give suppose 300 rupees, they have to spend minimum 270 rupees and 330 rupees के अंदर. So 10% plus in minus has to give a leverage कि तुमको इतना स्पेंड करना ही है. ऐसा नहीं कि एक बिस्किट के पैकेट ले गए आगे चल गया कि पापा हो गया मेरा शॉपिंग. एंड यू कैन बाय टू मेनी थिंग्स विच विल कॉस्ट यू 500 रुपीज. ऐसा नहीं हो सकता है. सपोज आई गिव 100 रुपीज, और वो 300 रुपीज भी कैसे आता था. वी यूज टू हैव अ चार्ट. हम चार्ट होता था कि उसके बिहेवियर के ऊपर, व्हाट दे आर डूइंग, व्हाट दे आर प्लानिंग, उसके ऊपर चार्ट लगता. बकायदा मैंने चार्ट बना के उसके ऊपर पॉइंट देते थे हम. वी यूज टू गिव पॉइंट्स. एक स्टिकर था तो स्टिकर के ऊपर पॉइंट देते थे, मेकिंग इंटरेस्टिंग. सो दिस इज व्हाट यू कैन डू इट. थोड़ा सा दिमाग लगाओ. अब आप इंटरनेट के जमाने में बहुत कुछ मिल जाता है. यू कैन थिंक ऑफ समथिंग लाइक दिस एंड क्रिएट अ एनवायरमेंट वेयर दे एंजॉय टॉकिंग टू यू. ठीक है, और ये सब मिलेगा. तो बहुत सारा आपके पास एडवांटेज है. लॉट ऑफ थिंग्स यू कैन डू इट.
if you if there are people who are interested, I'll take more sessions like this and we can take it on this. Coming back to this Vedic maths and mental maths, ठीक है, and IPM. I have one more hour to go, ठीक है, उसके ऊपर से, क्योंकि उसके बाद 11 बजे मेरा दूसरा सेशन है. आई कैनॉट एक्सटेंड. लास्ट 20-30 minutes I'll keep it for the question answer. But before that, I personally like mental maths and Vedic maths. ठीक है, मेंटल मैथ्स की बहुत वैरायटी. मेंटल मैथ्स ओशन है. मेंटल मैथ्स ओशन है. आपको जब भी चाहोगे, जितनी बुक आपको मिलती है, जितना आपको इंटरनेट पे मिलता है, सब कुछ आप ट्राई करो. ठीक है, देयर आर डिफरेंट टेक्निक्स अवेलेबल. आपको वैदिक का कोर्स मारोगे, चैट जीपीटी आपको सीधा वैदिक का कोर्स डाल के दे देगा, राइट. ओनली थिंग इज दे विल नॉट अंडरस्टैंड कि आपको क्या करना है, कौन से लेवल पे करना है. ठीक है, ये सारी चीज आपको मिल जाएगी. लेकिन हाउ टू टेक नाउ माई कोर्स, यूजुअली व्हाट आई एम सेइंग, मेरा अभी वैदिक, और मैं पहले 1 साल पहले मैंने एवरी ईयर आई इंट्रोड्यूस सर्टेन थिंग्स, बट देयर इज अ डिफरेंट सेशन, आई टेक इट. व्हाट आई यूजुअली डू इट, आई डोंट डू प्लेन वैदिक मैथ्स. मैं वैदिक मैथ्स पूरा नहीं कराता हूँ. ठीक है, आई एज पर द एज ग्रुप, मैं सबको वैदिक में ऐसा नहीं लेता हूँ. मतलब आई हैव सीन पीपल, इफ यू गो ऑन टू इंटरनेट, सर्च फॉर वैदिक मैथ्स, पीपल यू से कि सर 8 साल से लेके 80 साल तक कोई भी कर सकता है वैदिक मैथ्स एनी टाइम. और 80 साल के 90 साल भी बोलते हैं वो लोग, एनी बडी 8+. मतलब आप सोचो कि अगर 8 साल का एक बच्चा है और 50 साल का एक आदमी है, जैसे मैं अगर कर रहा हूँ, एंड इफ आई डू इट 80 years, आपकी अंडरस्टैंडिंग में इतनी गैप है. हाउ मच गैप दे हैव in understanding. How can you teach 8 year student with 50 years guy and 80 years old man, right? Possible ही नहीं है. ठीक है, बट बहुत सस्ते में बेचते हैं. दे हैव 999, 1999, 2000, 2500. वैसे 8-10 सेशन देते हैं. आपको लगता है 200 रुपया पर सेशन है, 150 रुपीज पर सेशन है, कर लो ना, क्या जाता है. बट इवेंचुअली वेस्ट योर टाइम, फॉरगेट ऑफ द मनी, यू वेस्ट लॉट ऑफ योर टाइम ऑफ योर एंड योर चाइल्ड. इनफैक्ट यू आर डूइंग बैड टू योर चाइल्ड इफ यू आर पुटिंग इन सच थिंग्स. क्योंकि क्या होता है, उनको समझ में ही नहीं आएगा. एंड दिस इज यूजुअली वेबिनार काइंड ऑफ थिंग. वहां पे 200, 300, 400 लोग होते हैं. योर चाइल्ड डोंट गेट टाइम टू टॉक टू देम. ठीक है, आपको आता ही नहीं है डिस्कस करना उसमें. एंड वो बहुत चीप, मतलब 2,000-3,000 में आपको पूरा कोर्स दे देंगे कि मैं पूरा करा रहा हूँ, ये करा रहा हूँ. इट इज ऑफ नो यूज टू यू, राइट. आपको बहुत सारे डॉक्यूमेंट, बहुत सारी वर्कशीट दे देगी. जब आपका बच्चा समझ ही नहीं पाएगा तो कर कैसे पाएगा वो. ठीक है, सो दैट इज व्हाट आई यूजुअली लर्न. मेरा यूजुअली होता है कि आप एज ग्रुप देखो, वेन एवर, ऑफलाइन, ऑनलाइन, वट एवर यू इवेल्युएट, wherever you are, doesn't matter, but you evaluate certain things where आपका एज ग्रुप है, विच इज मैक्सिमम 2 years का गैप हो, उससे ज्यादा नहीं. अगर आपका बच्चा 8 साल का है तो 8 साल से 9 साल से 10 साल, या मे बी 9 साल है तो 8 साल या 7 साल और 11 साल, 2 years प्लस एंड माइनस का अगर होता है मैक्सिमम, आई एम सेइंग 1 year है तो बेस्ट है. बिकॉज वैदिक मैथ्स जो ट्रिक है, हर एक का अलग व्यू है उसके अंदर. ठीक है, हर एक ट्रिक सबके लिए नहीं है. ठीक है, तो कोई फर्क नहीं पड़ता. बेसिक थिंग इज रिक्वायर्ड, देन यू शुड नो एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, दैट्स इट. उसके अलावा उसको कुछ नहीं चाहिए. डिवीजन आया तो बेटर है, नहीं आया तो कोई प्रॉब्लम नहीं. यस करिश्मा मैम, यू हैव अ क्वेश्चन. Yes, sir. Sir, I just wanted to understand this Vedic math can also teach along with the abacus and IPM. यस यू कैन डू इट. आईपीएम से, आईपीएम तो डिफरेंट है. आईपीएम तो उसका एप्लीकेशन है. अच्छा. आईपीएम है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स है, वो उसकी एप्लीकेशन, जो भी मेंटल मैथ्स, एबेकस, ये आप जब सीखोगे ना, दिस विल इंक्रीज एनहांस द स्पीड एंड नॉलेज, राइट. Okay. तो उसको अप्लाई करने के लिए आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम लगेगा. कॉम्पिटिटिव एग्जाम का उससे कोई लेना देना नहीं है. Okay. Okay. इनफैक्ट फॉर, इफ यू आर प्रिपेयरिंग सीरियसली फॉर योर चाइल्ड टू कॉम्पिटिशन, देन एनी ऑफ दिस, मतलब विच एवर यू लाइक. आई पर्सनली डोंट लाइक एबेकस, वो अलग बात है. ठीक है, लेकिन यू आर फाइंडिंग अ रिजल्ट, यू आर गेटिंग इट गुड रिजल्ट. देयर आर, आई हैव सीन पीपल, स्टूडेंट हु रीच टू 10th लेवल और उससे बियॉन्ड, और वो खतरनाक करते हैं. मतलब Hmm. आप जब आप बोलते जाओ, खट 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 खट, वो आंसर आपको दे देगा. नहीं, यू विल से नंबर ऑफ वीडियोस ऑन ऑनलाइन ऑल्सो, लेकिन दिस 1 in 1,000 किड होता है. Yeah, ठीक है, yeah. 80% ऑफ द किड ड्रॉप आफ्टर सेकेंड और थर्ड, और मैक्सिमम टू मैक्सिमम फोर्थ लेवल में ड्रॉप कर देते हैं हम लोग, Yeah, पेरेंट्स yeah, I फोर्स also करके. do the same thing. I have done the same thing, first, second, third, just addition, subtraction. After करेक्ट. that, don't go. So that's I'm just exploring whether, on the Vedic math, because Vedic math का मैंने कभी सेशन ही नहीं अटेंड किया, तो मुझे पर्सनली नहीं मालूम था नहीं, कि बहुत क्या. अभी बताऊं, कुछ सैंपल बताऊंगा मैं आपको, सो एटलीस्ट यू विल नो व्हाट इज सैंपल, आई विल टीच यू आल्सो. ठीक है, ओके. इसमें कोई इशू नहीं है. यहाँ पे मैं आपको बताऊंगा भी कि आपको क्या कर सकते हो, आप कितना आप एक्सप्लोर कर सकते हो इसके अंदर, राइट. या, थैंक यू सर. नाउ एक सिंपल चीज है कि फॉर एग्जांपल, इफ आई टेल यू
चलो एक सिंपल ट्रिक से चालू करते हैं. नाउ वी हैव डन इनफ ऑफ दिस, विल सी सिंपल ट्रिक्स. सो ज्ञान की बातें बहुत होगी. ठीक है. सो एनीबडी वांट्स टू डू इट. ओके, गो विथ मेंटल मैथ्स. एंड मैंडेटरी है आपको, नहीं ऑप्शन नहीं है कि सर मैं स्कूल में तो पढ़ रहा है मेरा बच्चा. स्कूल इज, इफ यू टेक नॉट इवन 10% ऑफ मैथ्स व्हाट दे विल टीच, नॉट इवन 10%. आई कैन गारंटी इफ आई इंटरव्यू 100 टीचर्स, not even 10 will pass my test. नॉट इवन टेस्ट 10. राइट. बहुत यंग होते हैं, बहुत सारी चीजें होती है. बहुत कुछ क्वेश्चन में से पूछूंगा, उनको समझ में नहीं आएगा पूछ क्या रहा है. ठीक है. बिकॉज दे आर वेरी यंग, दे आर इन द एज ऑफ 25 to 35. उनका खुद का मैथ्स इतना ये नहीं होता है, अनलेस दे आर वेरी पैशनेट अबाउट. मैं मानता हूँ 10-12 टीचर्स बहुत एक्सीलेंट होते हैं. ठीक है. बट दे हैव रिस्ट्रिक्शन. स्कूल में ही होता है कि 30 स्टूडेंट होता है, दे हैव अ 40 मिनट लेक्चर, 30 मिनट लेक्चर. उसमें उनको मैनेज करने में ज्यादा टाइम चला जाता है. मतलब स्कूल में जितना मैथ्स का लेक्चर होता है, आई टेक 50% ऑफ इट, देन आई कवर ऑलमोस्ट 2 to 3 times ऑफ व्हाट पोर्शन दे कवर. I take 50% of time and cover three. I prepare for two competitive exams in higher grade 5 के बाद, and do much more than what they can do it, and very easily. कोई मेरे को स्ट्रेस नहीं होता है. बट ओनली थिंग इज, आई हैव लिमिटेड बैच साइज. वहां पे उनके पास 30 स्टूडेंट मिनिमम होते हैं, और उसको सीरियसली कोई नहीं लेता है. ठीक है. बिकॉज दे आर नॉट वेल पेड, तो उनको भी कोई फर्क नहीं पड़ता है कि आप क्या कर रहे हो. सो दैट इज वेयर I say if you're depending only school, then you're doing the biggest mistake of your life. If you're doing depending only on school, के स्कूल में सर वो 80-90 ला रहा है. प्रिपेयर योर सेल्फ फॉर कॉम्पिटेटिव एग्जाम. अगर किसी ने मेरे को बोल दिया ना, सर मेरा बच्चा कंसिस्टेंटली लेवल 1 क्लियर कर रहा है, लेवल 2 में पास हो रहा है, लेवल 3 के लिए जा रहा है, वॉट एवर, डिपेंडिंग, समबडी हैज लेवल 1 ओनली, समबडी हैज लेवल 2, समबडी हैज लेवल 3 ऑल्सो. ठीक है. अगर मैं बोल रहा हूँ कंसिस्टेंटली मेरा बच्चा 4 कॉम्पिटिशन ले रहा है, कंसिस्टेंटली पिछले 2 साल से कर रहा है, आई कैन राइट इन अ पॉइंट ऑफ ब्लैंक कि योर चाइल्ड इज गुड इन मैथ. एंड 100% बोल सकता हूँ, बट आई से 99.9% आई विल नॉट बी रॉन्ग. आई कैन गिव दिस राइटिंग गारंटी कि आपका बच्चा अगर ये कंसिस्टेंटली कर रहा है, तो आपका बच्चा अच्छा ही है मैथ्स में. देर इज नो सेकंड थॉट ऑन दैट. एंड दिस इज आई एम टॉकिंग माई डेकेड्स ऑफ एक्सपीरियंस विद मैथ. राइट. मेरी मैथ से कभी मैंने मैथ छोड़ा नहीं है. आई पास माई इंजीनियरिंग इन 93. ठीक है. 1993. उसके बाद मैं इंजीनियरिंग पढ़ाता था, फिर मैं 11th 12th को पढ़ाने लगा, फिर धीरे धीरे आई कम टू स्कूलिंग सेक्शन. राइट. धीरे धीरे जैसे माई एज इज इंक्रीजिंग, आई एम कमिंग इन टू लोअर ग्रेड्स. बिकॉज ये मैंने समझा कि जहां पे आप लोअर लेवल पे, जब आप बच्चे को, जैसे मेरा खुद का एक्सपीरियंस है मेरे बच्चों के साथ. ठीक है. एक्सपीरियंस, द मोर यू ट्रेन योर चाइल्ड इन लोअर ग्रेड, ओके, इट इज मच बेटर. आप बिल्कुल उसकी जो कैपेसिटी है ना, आप उसको अंडर एस्टिमेट मत करो. अगर देर इज अ धवल सर हु इज 4.5 years, सर आई कैन टेल यू, यू टेल मी, आई सेंड यू वन वर्कशीट, योर चाइल्ड मे बी इन द ग्रेड जूनियर केजी और मे बी सीनियर केजी का लेवल के बच्चे हैं. ठीक है. आई गिव यू अ ट्रिक. मैक्सिमम टू मैक्सिमम 6 months में आई टेल यू ऑल द थिंग्स. एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लीकेशन, योर चाइल्ड विल नो with 1 to 10 tables within 6 months. Only thing is I'll tell you how to, what to teach, and since you are a teacher, you know how to teach maths. I'll give you worksheets and you just follow my method. Okay. आपको अगर ये रिजल्ट नहीं मिला, आप जो बोलोगे हार जाऊंगा मैं. मे Sure, बी. sir. We'll definitely implement, sir. We'll डेफिनेटली. definitely सो connect and ये implement. Thank आपको you. ये Thank मिलेगा ना, मतलब ये मेरा ब्रह्मास्त्र है. किसी को टेबल नहीं समझ में आता है, आई टेल यू दिस, जस्ट फॉलो दिस, एंड आई गिव नंबर ऑफ वेज यू कैन लूर योर चाइल्ड. उसको थोड़ा सा लालच दो, थोड़ा सा इंसेंटिव दो, थोड़ा सा ये करो, बहुत सारी चीजें हैं. ठीक है. आई टेल यू, यूजुअली आई इम्प्लीमेंट विद लॉट ऑफ पेरेंट, दोज हु सीरियस एंड mind well. I don't charge a single rupee for this. Even I have a 2-3 calls. My calls goes for half an hour, 45 minutes. I don't charge them anything because that parents is very sincere about the child education, and that's why I don't charge them anything. Right. बट कमिंग sure. बैक टू दिस, कि अगर आपके पास यहाँ पे कुछ है, सपोज यू वांट टू सी, आई एम राइटिंग एनी रैंडम नंबर. चलो, एनी बडी कैन गिव मी एनी डिजिट. आई राइट 5-6 नंबर्स, 5-6 डिजिट नंबर. यू गिव मी एनी नंबर. एक एक मैं आपको बता रहा हूँ पैटर्न कैसे काम करता है. ठीक है. आप मेरे को कोई भी नंबर बता दीजिए, एक कोई भी डिजिट, एक एनी बडी रैंडमली 9, बताइए. आप रैंडमली, आई वांट 3-4 पार्टिसिपेंट, मोर इज बेटर. ठीक है. आप कोई भी एक डिजिट बताइए रैंडमली. 9, 9.
ओके, एनीबडी 9, चलो यहाँ पे मैंने, ओके 9, फिर एनीबडी गिव अ डिफरेंट रैंडम नंबर्स, रैंडम डिजिट्स। 7. 7, फटाफट बताइए, जितना आप जल्दी बताओगे 5. बहुत। 5, 5. 6. 6, एनीथिंग, नॉट नेसेसरी, यू कैन रिपीट ऑल्सो, लेकिन बहुत ज्यादा एक ही रिपीट नहीं करना, सब कुछ अलग अलग कर सकते हो, मतलब 8. 8। सो आई डोंट नो हु इज गिवन व्हाट, राइट? 2. 2, चलो, okay, so now you'll get more options, right? Here you will have you, I'll write me, ठीक है, you, me, ठीक है, I have to add all these number, whatever, I don't know what you are going to give, there is some calculation I will do, ठीक है, मैं यहाँ पे सबको ऐड करूंगा, I have to add all of this, right? और ये आंसर मैं आपको अभी लिख देता हूँ, right? ठीक है, I'll just write the answer right now. If you want 2 level 3 level, if you want 3 level, I'll just add 3 level, but 2 level में थोड़ा सा जल्दी हो जाएगा, right? I'm going to add this, okay, 2, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7 8, हाँ ठीक है, ओके, दिस इज आंसर व्हाट आई गॉट इट, राइट? आप मेरे को यू बता दीजिए, एनी डिजिट यू कैन टेल, ओके, विच हैज टू बी 7 डिजिट मैंडेटरीली, सो एनी डिजिट एनी प्लेस यू कैन टेल, आई डू अ बिट ऑफ कैलकुलेशन, ओके, थोड़ा सा मेरे को एक 30 सेकंड लगेगा, but I'll just do it and I just tell you, I'll keep a different number for you, different color. Suppose if I give you blue color for you. Okay, any parent, again, any randomly you can ask. I'll keep on randomly write the answer digits. 3. 3. Quick, 5. quick, quick. 6. 6, 5. 5, 8. 8, 4. 4. 4, 1. 1, 0. 0, ठीक है, चलो, 3 + 6, sorry, 1 minute, I'll just change my color, because at least you know. ओके, चलिए, नेक्स्ट, नेक्स्ट 7. 7, and somebody will be ready with a 2. calculator, huh? 2. 2, 9. 9, 9. है, बच्चा भी है कोई, कौन है बेटा? Welcome. Kavya. काव्या, हाय बेटा, आई टॉक टू यू बेटा, ठीक 4. है, 4, 4. हाँ, 6. 6, 8. 1. 1, ओके, चलिए, ठीक है, ना यहाँ पे 5 + 4 9, 5 - 9 0, 8 + 1 15, 15 divided by 3, 1 2 3 8 1, 8 - 6 1 1 9, 8 9 - 1, 9 - 7, okay, done. Perfect. Okay, is it correct answer? Perfect. Perfect है आंसर, ठीक है, now those who are good in maths, now this is something I have randomly written something, you are given a random digits, okay, I'll tell you the trick, ठीक है, आप ये सीख के जाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं मेरे को, right? Now anybody can crack this logic कि मैंने क्या किया है, मैंने क्या कैलकुलेशन लगाए थे इसमें, यू कैन राइट ऑन अ चैट इफ यू वांट टू क्रिएट इंटरेस्टिंग, इफ यू वांट टू, आपको क्रिएट करना है इंटरेस्टिंग, तो आप मेरे को चैट में बता सकते हो लॉजिक, ठीक है, इट विल कम टू मी ओनली, आप मेरे को लॉजिक स्टेटस है, और जिसको बिल्कुल समझ में आया सर ये कैसे किया है, मतलब कैलकुलेशन कर लो आप,
आप कैलकुलेशन कर लो यहाँ पे कि ये कैलकुलेटर में डाल के चेक कर लो, ठीक है। इफ यू वांट टू राइट, आई जस्ट राइट इन द कैलकुलेटर ऑल्सो, ठीक है। आप मेरे को बता सकते हो कि आंसर करेक्ट है कि नहीं। जब मैंने आंसर आपका पहला नंबर लिया था, मैंने आंसर लिख दिया था, ठीक है। आई टेल यू द लॉजिक ऑल्सो कि इसके अंदर क्या है। बहुत सिंपल लॉजिक है। एनीबडी, मतलब 19%, 19 के 100% आंसर करेक्ट ही है, ठीक है। आप मेरे को बता सकते हो क्या करना है। हमेशा बैलेंसिंग करना है। करेक्ट। तो बैलेंस इनमें किस लॉजिक से किया है? आई वॉन्ट अ लॉजिक टू बी बैलेंस। जो मैंने किया ना, 4 - 5, 7 - 2, या 6 - 1, 6 + 1, और वट एवर आई कैलकुलेट। और मैं थोड़ा सा आपको इसका लॉजिक समझ, देखो आपको अभी कुछ समझ में आया, ये 99% आपको किसी को समझ में आएगा क्या होगा। अभी मैं आपको थोड़ा सा इसका लॉजिक, मैं ना कुछ बताऊंगा नहीं आपको, लॉजिक नहीं बताऊंगा। आई विल मार्क समथिंग एंड यू विल एबल टू गेट द लॉजिक ऑफ योर सेल्फ, राइट? You Answer. add the first Answer. 3 rows and then subtract it with the answer. Yeah, नहीं with the नहीं, answer, yes. कुछ The भी नहीं है total is मैम, ऐसा 9 कुछ, always. ऐसा कुछ कॉम्प्लेक्स नहीं कर रहा हूं मैं। आई एम नॉट The डूइंग total is एनीथिंग 9 कॉम्प्लेक्स। खाली always. आप ये चेक करो कि मैं क्या बॉक्स बना रहा हूँ। Oh, they are totaling same. समझ में आया? Yes, no, totaling is same. क्योंकि मैंने हाईएस्ट डिजिट लिया है, उससे ज्यादा नंबर बड़ा हो नहीं सकता है, ठीक है। डिजिट, देयर इज ओनली 9, 0 to 9, राइट? अब जब आपने लिखा होगा, नाउ दिस इज कॉल्ड एज पैटर्न, ठीक है। अब बोलते हैं मैजिक, अरे बाप रे, आप कैसे चेंज करते हो, आप कैसे डिसाइड करते हो? कुछ नहीं इसके अंदर, राइट। मेरे को क्या करना था, आप अगर देखोगे 2 यहाँ पे है, यहाँ पे 2, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे मैंने 2 माइनस किया, और यहाँ पे मैंने 2 ऐड कर दिया। मतलब क्या होगा, जो 7, 8 डिजिट, 5 डिजिट, जितने डिजिट आपके पास है, मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता है, राइट। अब क्या क्या, आप जो भी डिजिट बोलो, मैंने यहां वहां मैं एक्चुअली 2 सेकंड के अंदर लिख सकता था, जैसे आपने आंसर लिखा ना, फट 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 में लिख सकता था साथ में, ठीक है। बट आई पर्पजली डिडंट डू इट, क्योंकि मेरे को थोड़ा सा क्यूरियोसिटी क्रिएट करना था, राइट। कि अच्छा ये कैसे किया, ये कैसे किया, क्या कैलकुलेट, मैंने जानबूझ के यहाँ वहां ये वो कैलकुलेशन किया, लेकिन मैं कुछ नहीं कर रहा था। प्रैक्टिकली आई वॉज नॉट डूइंग एनीथिंग। मेरे को तो ये चल टाइम थोड़ा सा देना, आपका ध्यान डाइवर्ट करना था। जो मैजिक करते हैं ना, आपका ध्यान डाइवर्ट करते हैं वो लोग, एंड वो हाथ की सफाई दिखाते हैं। दैट इज व्हाट एक्चुअली आई डिड, ठीक है। मेरे को और कुछ नहीं करना था, मैंने सिर्फ उल्टा सीधा अल्टा फिटा। तो आपने बोला अच्छा लाइन कैसे लिखा, फिर 1 लिखा, फिर मैंने 6 लिखा, फिर 5, 8 लिखा, तो मैंने उल्टा सीधा लिखा। तो एटलीस्ट आपको समझ में नहीं आएगा मैंने क्या कैलकुलेशन लगा रहा हूँ। मैं एक दो जगह पे 6 और 9 ये करके मैंने नया नया यहाँ पे लिखा, फिर मैंने 4 - 5 करके यहाँ पे 5 लिखा, 4 + 1। तो देन यू थॉट कि अच्छा क्या कर रहा हूँ, राइट। लेकिन मैं कुछ नहीं कर रहा था, आई वॉज जस्ट डूइंग टाइम पास, ठीक है। मैं सिर्फ टीपी कर रहा था, जस्ट टू मेक श्योर दैट यू नो कि व्हाट एग्जैक्टली यू आर सपोज टू थिंक। मैं ये चाह रहा कि आपका लॉजिक क्लियर ना हो आपको, राइट। मैं कुछ नहीं कर रहा था, क्योंकि मेरे को मालूम था पहले ही कि मेरे को 9, 9, 9, 9, 9, 9 +9, 9, 9, 9, 9, 9 ऐड करना है, दैट्स इट। अब मेरे को ऐड करना है, तो मैंने ऐड किया कैसे किया? आई कैन डू इट, दिस इज, इफ यू टेक इट, इट इज क्या होगा, 1, 9, 9, 9, 9, 9, 8, ये मेरे को ऐड करना है। मैंने क्या कर दिया, मतलब ये आप समझो कि ये 20 लाख मेरे को ऐड करना है, मैंने 2 करोड़ ऐड कर दिया, ठीक है। और मैंने इसमें से माइनस कर दिया 2, दैट्स इट, इट गॉट द सेम थिंग। मैंने यहाँ पे ये ऐड कर दिया, और यहाँ पे 2 माइनस कर दिया, खत्म, दैट्स इट। और कुछ नहीं किया मैंने। आप चेक करो, बाकी के बीच की डिजिट सारी सेम है, ऑल डिजिट्स आर सेम। जस्ट गिव मी, दिस इज व्हाट द पैटर्न वर्क्स। आप जब भी देखोगे, एंड 9 इज अ वेरी वेरी मैजिकल नंबर, ठीक है। आई एम फॉर्चुनेट इनफ टू, गॉड हैज गिवन मी डेट ऑफ बर्थ एज 9, लेकिन 9th इज अ वेरी मैजिकल नंबर। आप देखोगे बहुत जगह पे, आप जब उस पे जाओगे ना, उसका टोटल करो आप कार का, ठीक है। बहुत प्रीमियम नंबर्स होते हैं 9 वाले, ठीक है। यूजुअली लोग 5 भी करते हैं, किसी का लक्की नंबर है जो ये करते हैं, दे बाई द नंबर्स, बट यूजुअली 9 वाले आपको बहुत दिखेंगे, ठीक है। आई यूजुअली कीप ऑन चेकिंग नंबर्स। मैं टोटल करता हूं तो मेरे को समझ में आता है ये बंदा 9 का फैन है, और बहुत 972 होगा, ठीक है। और एक एक नंबर है बॉस, ठीक है, विच इज 8055, ये भी 18 होता है। उसका टोटल देखो हमेशा 9 का होगा, 9, 18, 27, 36, ऐसे टोटल होते हैं उनके, राइट। तो वो सारे नंबर वैसे होते हैं जो 9 के टेबल है। तो देर इज सो मेनी ट्रिक्स ऑफ 9, आप बहुत चेक करोगे। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं ये लॉजिक समझ में आ गया आपको?
सो दिस इज नथिंग अबाउट द पैटर्न। आप पैटर्न करो, इसमें 3-4 चीज अपने बच्चों को सिखाओ, दे विल फाइंड इंटरेस्टिंग। ये बहुत इंटरेस्ट क्रिएट करता है बच्चों में कि वाओ ऐसे कैसे हो सकता है, ये क्या हो सकता है। मतलब एक सिंपल लॉजिक है, बहुत सिंपल ट्रिक्स है। फॉर एग्जाम्पल अगर यहाँ पे मैं आपको बताऊं एक सिंपल लॉजिक, जैसे मल्टीप्लीकेशन आता है, अगर मैं बोलता हूँ 48 मल्टीप्लाई बाई 99, कोई भी एक 99 की ट्रिक है, कोई भी 2 डिजिट नंबर 3 डिजिट नंबर आप जो भी करो, ठीक है। अगर मैं इंटरेस्ट क्रिएट करना चाहता हूँ, बोला 8 5 6 7 8 1 5, ठीक है, मल्टीप्लाई बाई 9 9 9 9 9 9 9। कोई बोलेगा, इसको बोलेगा ना सर 100 से मल्टीप्लाई करो -48 करो, विच इज करेक्ट, राइट। 4800 करो माइनस करो, बोला ये ठीक है, लेकिन इतने बड़े नंबर को कैसे करोगे। इसका सिंपल ट्रिक है, इगर इफ नंबर ऑफ नाइन्स आर इक्वल, बहुत सिंपल ट्रिक है इसकी, ठीक है। अब उसको सिंपल कर दो, 1 2 3 4 5 6 7, रैंडमली मैंने कोई भी नंबर लिखा है, आप उसको नंबर लिखते जाओ 8 5 6 7, आपके कैलकुलेटर में भी ये आएगा नहीं। यहां से एक सब्ट्रैक्ट करो, जस्ट सब्ट्रैक्ट दिस फ्रॉम 1, ठीक है। आप उसको सब्ट्रैक्ट करो और इसका नाइन्स भी यहाँ पे बनाते जाओ, ठीक है, क्रिएट करते जाओ यहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ पे जैसे इसका 4752, ये आपका आंसर है। तो मैंने क्या किया, यहाँ से सब्ट्रैक्ट किया और यहाँ पे इसका फ्रेंड ऑफ 9 बना देगा हर एक डिजिट का, ठीक है। अब यहाँ पे आ गया तो इसका 9 का क्या आएगा 1, इसका आएगा 4, इसका आएगा 3, इसका आएगा 2, इसका आएगा 8, इसका आएगा 1, इसका आएगा 5, खत्म। ये आपका आंसर हो गया, आपका 8 5 6 7 1 8 4 1 4 3 2 8 1 5। आप कैलकुलेटर में चेक कर लो, बहुत सिंपल ट्रिक है। वैसे 3 डिजिट बाई 3 डिजिट होता है उसका आता है, 2 डिजिट बाई 3 डिजिट होता है उसमें नंबर, नंबर ऑफ नाइन्स। अब इसके 3 वेरिएंट है, नंबर ऑफ नाइन्स ज्यादा है, नंबर ऑफ नाइन्स कम है, ठीक है। तो नंबर ऑफ नाइन्स ज्यादा है तो कैसे करोगे, नंबर ऑफ नाइन्स कम है तो कैसे करोगे, कितने कम है क्या कम है, तो उसकी अलग अलग ट्रिक्स है, राइट। सो इट इज वन ऑफ द ट्रिक। फॉर एग्जाम्पल एक बहुत सिंपल ट्रिक है, आपको एनी नंबर एंडिंग विथ 5 उसका स्क्वायर करना है, स्क्वायर नंबर। अब स्क्वायर नंबर आपको करना है, कोई भी 2 डिजिट का स्क्वायर है, किसी का स्क्वायर रूट है, क्यूब रूट है, वो भी आसानी से निकाल सकते हो आप, राइट। अगर किसी का स्क्वायर है, फॉर एग्जाम्पल 45 का स्क्वायर करना है, तो मैं लिखता हूँ इसको 2025, ठीक है। 75 का स्क्वायर करना है। अब आप मेरे को बता जाओ एनी नंबर एंडिंग विथ 5, 2 डिजिट का होगा तो बेटर है, 3 डिजिट का थोड़ा सा टाइम लगेगा बट हो जाएगा वो। तो 75 आ गया, तो यहाँ पे क्या है 5625। आप अपना कैलकुलेटर से चेक करो, जब तक आप कैलकुलेटर टाइप करोगे मैं आंसर लिख दूंगा इसका, ठीक है। एनीबडी वांट्स टू ट्राई एनी नंबर, यू कैन गिव मी। आप बोल सकते हो ये रट्टा मारा है, हो सकता है कि सर आपको ये सारी चीज मालूम है, आप कोई भी एक नंबर बता दीजिए। 235. हाँ 235. नहीं, ये मैंने 235. बोला 2 2 3 5 में थोड़ा टाइम लगेगा, 3 डिजिट का, राइट। लेकिन वो लॉजिक वही है, मैं आपको बताऊंगा लॉजिक वही है, Okay. आ जाएगा। उसके अंदर आपको 2 ट्रिक लगानी पड़ेगी, लेकिन वो आएगा वही। 25 23 24, तो ये आएगा 2 5 2, ओके, दिस हाउ इट विल कम, ठीक है। 23 to 24. यस करेक्ट, ठीक है। सो ये आता है, ये सिंपल लॉजिक है, इसमें बहुत सिंपल मैथ्स है, ठीक है। बहुत ज्यादा दिमाग लेगा, देखो यहाँ पे 7 × 8 56, 4 × 5 20। मैं लॉजिक ऐसे ही बताने वाला हूँ तो कोई इशू नहीं है। अब फॉर एग्जाम्पल आपको ये बताया होगा सर 23 × 24 आपने इतना फास्ट कैसे किया, राइट। मेरे यहाँ पे 23 का स्क्वायर मेरे को मालूम है 529 है, राइट, ये मेरे को मालूम है, राइट। उसके अंदर मैंने 23 और ऐड कर दिया, 20 नहीं सॉरी हाँ 23 और ऐड कर दिया, करेक्ट। 24 टाइम्स है ना, तो 255 हो गया, राइट। इट इज वेरी सिंपल टू डू इट, मतलब मेरे को स्क्वायर सारे याद है, ठीक है। सो ये मैंडेटरी में बोलता हूँ, अगर आपका बच्चा ग्रेड 5 में या ऊपर है तो आपको 30 तक के स्क्वायर उनको आने चाहिए मेंटली, और क्यूब आपको 10 तक की कम से कम आना चाहिए, तो वो बहुत ज्यादा अच्छा होता है उनके लिए। एंड देयर सम पैटर्न, ठीक है। अगर मैं आपको ये बताऊं, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल चलो मैं कोई भी एक, आप मेरे को ये बता दीजिए, ठीक है, एक स्क्वायर रूट तो आपको अच्छे से आता है, ओके, ठीक है, चलिए, ओके, चलिए, ठीक है, नो प्रॉब्लम, ठीक है। तो अभी ये बताइए मेरे को कि फॉर एग्जांपल स्क्वायर रूट, जो हायर ग्रेड के बच्चे हैं, जो ग्रेड 6 के भी काफी पेरेंट्स हैं, अब मेरे को बताओ स्क्वायर रूट,
मतलब ये टेक्निक थोड़ी सी मैं वैदिक में नहीं सिखाता हूँ, बट मैं आपको बता रहा हूँ कोई भी स्क्वायर रूट है, फॉर एग्जाम्पल 1 to 100 आपके पास है, राइट? आपके पास है 1, 4, 9, 16, 25, 36, 49, 64, 81, 100, राइट? इसका तो आपको स्क्वायर रूट बिल्कुल मालूम है, इसका आंसर क्या आएगा, राइट? 1 का स्क्वायर 1 होता है, 2 का 4, 9, 3, 9, 4, 16, 2, 5, 25, ये सारी चीजें आपको 1 to 100, 1 to 10 का सारे स्क्वायर है, राइट? लेकिन अगर अब आप कोई भी नंबर बताइए मेरे को, ठीक है, मैं आपको विदाउट कैलकुलेटर, मेरे दोनों हाथ यहाँ पे है, ठीक है, आई एम नॉट गोइंग टू डू एनीथिंग, मेरे यहाँ पे कोई कैलकुलेटर ओपन नहीं है, आप मेरे को बताइए, मैं अप्रोक्सीमेटली 1 डेसिमल के आजू बाजू का आपको बताऊंगा कि इसका स्क्वायर रूट क्या हो सकता है, ठीक है? आप मेरे को बताइए वो नंबर, तो उसके हिसाब से मैं बता पाऊंगा आपको क्या है। आप कोई भी नंबर बता सकते हैं जो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, ठीक है, उसका आंसर डेसिमल में आएगा, ठीक है? और मैं दूसरा हाथ ऊपर रखूंगा मैं, एटलीस्ट यू नो, आई एम नॉट सेइंग इट विल बी वेरी एक्यूरेट, लेकिन काफी नजदीक आएगा। थोड़ा सा कैलकुलेशन मेरे को लगेगा करने के लिए, लेकिन आई विल टेल यू। बताइए, आई टेल यू द लॉजिक ऑल्सो, डोंट वरी। अब बताइए, कोई भी एक नंबर बता सकते हैं 1 to 100 के अंदर जो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, उसका स्क्वायर रूट कैसे निकालना है? आई थिंक सारे एक्टिव वाले चले गए लगता है, एक्टिव पेरेंट्स, देर आर स्टिल 20+ पेरेंट्स है। बताइए। किंजल मैम है, जिसको ये था, और कौन है? मोहम्मद सर है जो भी एक्टिव है। बताइए, आप कोई भी नंबर तो बताइए। ठीक है, चलो, आपको नहीं लर्न करना तो आपकी मर्जी है, ठीक है, आई विल नॉट टेक दिस समथिंग दोज हु आर नॉट इंटरेस्टेड इन लर्निंग, ठीक है? नाउ यहाँ पे फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स, फॉर एग्जांपल, अगर मैं बोलूं कि एक जो अभी रिसेंटली ग्रेड 4 और ग्रेड 5 के स्टूडेंट है, या जिसको फैक्टर मल्टीपल नहीं समझ में आता है, व्हाट एग्जैक्टली आई हैव क्रिएटेड ट्रिक, राइट? फॉर एग्जांपल, आई जस्ट गिव यू वन ट्रिक कि हाउ वी हैव डन इट, ओके? Now, usually when you go for multiplication table, any worksheet, okay, you get 4 into 3 is equal to something. एक पैटर्न ये आता है, एक पैटर्न आता है समथिंग मल्टीप्लाई बाय 3 इज इक्वल टू 12, 4 मल्टीप्लाई बाय दिस इज इक्वल टू 12, ओके, ऐसा आता है। और मैंने जो वर्कशीट बनाई है, मैंने वर्कशीट ये बनाई है, ठीक है, ये वाली बनाई है। अब स्मार्ट बच्चे ये करते हैं 1 12, अगर जितना भी यहाँ पे जो भी नंबर बना 1 into 12, आपको 1 अलाउड नहीं डालना किसी भी जगह पे, 12 into 1, 1 into 12 इज नॉट अलाउड। आपके इसके अलावा कोई आपको नंबर चाहिए तो आप उसको दे सकते हो, लेकिन मैं प्राइम नंबर नहीं देता उसके अंदर, ठीक है, बाकी सारी चीजें आती है। सेकेंडली, ग्रेड 4 और ग्रेड 5 जो भी पेरेंट है, ठीक है, उनको 1 to 100 तक के प्राइम नंबर्स बिल्कुल आने चाहिए, without any flaw. They should be able to do it within maximum to maximum 1 minute. Maximum to maximum 1 minute. बाकी मेरे पास स्टूडेंट है जो 15 सेकंड से 20 सेकंड में बोलते हैं फ्लॉलेस, खट 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 खट, आराम से, ठीक है? अगर मैं स्पीड में बोलूँ तो मैं 10 12 सेकंड में भी बोल सकता हूँ, ठीक है? तेरा 25 नंबर्स, ठीक है, एवरी हाफ सेकेंड यू हैव टू टेल वन, राइट? तो ये पॉसिबल है, ठीक है? तो लेकिन ये आना चाहिए उनको। एक मिनट, जस्ट गिव मी अ मिनट। Just give me a minute. Huh? I just got a call. I have to give it to
So that was the important call. Now what I did, okay, to create this worksheet, okay, just to teach them कि how actually you can think. Okay, now for example, if I give you something is a 36. Okay, एक मिनट, किसका चैट आया है? आप ऑन करके बोल सकते हो? या आई नो मैम, देयर वाज अ ऑन म्यूट बिकॉज देयर इज अ कॉल केम, सो आई हैव टू डू इट नाउ। ये आप क्या कर सकते हो, मैंने एक उनको गेम बताया, यू कैन हैव प्लेयर्स एंड टीम, राइट? आई क्रिएटेड अ गेम फॉर प्लेयर एंड टीम। आपके टीम में कम से कम दो प्लेयर, दो दो टीम होनी चाहिए, और मैक्सिमम 9 पेरेंट, 9 से 10, या तो 10 टीम हो सकती है, दो प्लेयर हो सकते हैं, या तो दो टीम हो सकती है, 10 प्लेयर हो सकते हैं, इसके बीच में कुछ भी हो सकता है, वॉट एवर पॉसिबल, राइट? दिस इज नंबर ऑफ टोटल प्लेयर्स होएगा, मतलब अगर दो टीम के 10 प्लेयर है ईच, तो आपका 20 हो जाएगा। नाउ यहाँ पे है, यू कैन हैव 4 टीम्स एंड 9 प्लेयर ईच, और यू कैन हैव 6 प्लेयर ईच, राइट? तो आपके जो भी यहाँ पे है, तो मैंने 1 to 10 लिखा था, सिर्फ 12 थ्रीजा भी हो सकता है, ठीक है, इट कैन बी 18 टूजा ऑल्सो, राइट? सो ये दो टीम है, तो लेकिन मैंने बोला था आपका रिस्ट्रिक्शन यहाँ पे रखना, बिकॉज आई स्टार्टेड विद दिस। व्हेन यू गो टू हायर ग्रेड, थोड़ा सा हायर नंबर होगा, तो उसके अंदर आप उसको ये भी कर सकते हो। नाउ यू कैन हैव 4 टीम ऑफ 9 प्लेयर ईच, और 9 टीम ऑफ 4 प्लेयर ईच, तो आपका टोटल होगा 36। सो नाउ दे हैव टू थिंक कि व्हाट आई शुड डिस्ट्रीब्यूट, मैं यहाँ पे क्या डिस्ट्रीब्यूट करूँ कि वहां पे ये सारी चीजें उसको आ जाएगी, राइट? तो दिस इज आई क्रिएटेड अ गेम टू टीच देम कि हाउ दिस, नाउ हाउ इट विल हेल्प, दिस विल इफेक्टिवली हेल्प डायरेक्टली इनटू क्रिएटिंग ऑफ फैक्टर्स। आपको हमेशा देखो, आप उसको ट्रिक करो 4 into 3, तो आपको 12 बता देगा, लेकिन 12 कौन से टेबल में आता है, तो उसके लिए उसको समझाना पड़ेगा, उसके लिए आपको डिविजिबिलिटी टेस्ट लगेगी, राइट? सो देर आर सर्टन थिंग्स, दिस स्लोली फ्रॉम मल्टीप्लीकेशन यू कैन गो टू डिवीजन, डिवीजन टू यू कैन गो टू फैक्टर्स, फैक्टर्स फ्रॉम यू गो टू डिविजिबिलिटी टेस्ट। सो स्लोली जो आपका जो जर्नी है ना, बहुत स्मूथ बनेगा। सो यू शुड फाइंड द इनोवेटिव वे टू फाइंड दिस पर्टिकुलर थिंग, हाउ यू कैन डू इट। नाउ आई शो यू कपल ऑफ, एक डिविजिबिलिटी टेस्ट का मैं वर्कशीट ओपन करता हूं जस्ट टू शो अ सैंपल, ठीक है? बहुत सारी वर्कशीट, मतलब आई हैव मल्टीपल वर्कशीट्स, ऑल्दो दिस वर्कशीट आर नॉट गिवन फॉर एवरीवन, बट अगर मैं आपको यहाँ पे बता दूं कि फॉर एग्जांपल, अगर मैं यहाँ पे एक वर्कशीट ओपन करता हूँ, लेट मी ओपन द वर्कशीट फॉर से फ्रैक्शन का है या डिविजिबिलिटी का ओपन करता हूं। चलो, नाउ डिविजिबिलिटी के दो वर्कशीट में ओपन करूंगा, ठीक है? आई जस्ट ओपन वन हियर। ये 1 to 10 का है डिविजिबिलिटी, जिससे 7 नहीं है एज ऑफ नाउ, क्योंकि 7 को थोड़ा टाइम लगता है। एक दूसरा मैंने क्रिएट किया था, ये बहुत इंटरेस्टिंग वर्कशीट है, दिस इज वेरी वेरी इंटरेस्टिंग वर्कशीट, आई विल जस्ट शो यू। एक ये वाला है, एक ये वाला है। नाउ इफ यू सी माई अर्लियर वर्कशीट बिफोर 10 years और 12 years, जो मैंने सिंपल बनाया था, मैंने सिंपल रखा था कि यहाँ पे किया है कि वाई, आई मीन दैट वाज ऑफलाइन वर्कशीट, ठीक है? पीडीएफ में था वो, तो प्रिंट था उसका, तो वाई एन इसको लिखना पड़ता, बट यहाँ पे क्या है, दिस इज ऑटोमेटेड वर्कशीट। And then what I've done, the same worksheet I copied, and I was saying, suppose if I give one number, 2, 3, 8, 2, ठीक है? मैंने बोला 2 का यस या नो, और मिनी जी ने क्या है, स्माइली दिया था, आई क्रिएटेड वन स्माइली हियर। तो क्या होता था, यस नो लिखना था, तो स्टूडेंट स्मार्ट थे, उन्होंने या तो यस किया या तो 3 किया, यहाँ पे नो लिख दिया, करेक्ट है? जैसे मैंने लिखा यहाँ पे यस या नो, या फिर नो गलत हो गया, इसका बैड स्माइली दिया, उसने यस कर दिया, तो आपका स्माइली आ गया, क्योंकि वो 1 1 था। इसका आंसर या तो यस है या तो नो, टॉगल बटन है ये, या तो यस में आएगा नो आएगा। देन आई क्रिएटेड दिस वर्कशीट बिफोर अराउंड, जब कोविड के बाद आया, कोविड के टाइम में 2019 में मैंने ये क्रिएट किया वर्कशीट, ठीक है? आई स्टार्टेड बाय द टाइम आई क्रिएटेड दिस वर्कशीट एंड स्टार्टेड गिविंग, तो अराउंड 17 18 का टाइम है, आई क्रिएटेड कॉम्बिनेशन, ठीक है? बहुत सारी चीज में कॉम्बिनेशन बनाई है, आई विल शो दिस कि कॉम्बिनेशन में ना वो ट्रायल एरर में करता है वो लोग, तो वो लोग समझेंगे कि भाई मेरा क्या आना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, एक सिंपल चीज मैं यहाँ पे बता रहा हूँ आपको कि यहाँ पे एक ये नंबर है, राइट? अब ये नंबर में इफ यू वांट टू डू इट, नाउ हाउ द ट्रिक वर्क्स, नाउ दोज हु नो द डिविजिबिलिटी, मैं डिविजिबिलिटी सिखाऊंगा नहीं, ठीक है? बट मैं थोड़ा सा टेक्निक बताता हूँ आपको क्या करना है, हाउ क्विकली यू कैन डू इट, राइट? एक डील सम करके पैटर्न है, उससे भी आप यूज कर सकते हो, या स्पेशल 3 और 6 के लिए, 3 और 9 के लिए काम आए।
नाउ इजीएस्ट डिविजिबिलिटी इज 2, 5 एंड 10। ठीक है, मैं बच्चों को सिखाता हूँ। टू अगर ये इवन ऑड नंबर है तो 2 नो आएगा। ठीक है, जब 2 नो आ जाएगा ना, बिना सोचे समझे सारे इवन नंबर को एन एन कर दो आप। ठीक है, देखो यहाँ पे फट से एन आ गया, यहाँ पे एन आ गया। राइट, तो ये मेरा खत्म हो गया। राइट, अब 5 का एंडिंग नहीं तो 5 को भी एन कर दीजिए आप। ठीक है, अब बच गया 3 एंड 9। ठीक है, 3 भी 9 हो गया, एन हो गया, बिकॉज 9 9 9 वो कैंसिल कर दिया, 7 बच गया। 7 में 9 भी नहीं हो सकता, 3 भी नहीं हो सकता, सारे एन है। राइट, अब आपने गलती से कोई एक यस या नो, कभी कोई बोलते हैं कि बच्चा बोलता है नहीं लास्ट नंबर 3 का है तो 3 का डिविजिबल है। लेकिन जब तक आप यहाँ पे पूरा नंबर नहीं डालोगे आपको कोई सवाल ही नहीं मिलेगा। लेकिन जैसे ही आपने यहाँ पे प्रॉपरली एंड डाल दिया तो आपके पास यहाँ पे स्माइली आ गई। और गलती से आपने कोई भी एक अल्फाबेट डाल दिया उसके अलावा, ठीक है, कोई भी एक गलत है, यू डोंट नो विच वन इज रॉन्ग, तो आपको यहाँ पे रॉन्ग स्माइली मिलेगा। फिर उसको साथ में जाके वापस डिविजिबिलिटी टेस्ट चेक करना पड़ेगा। आई टेक समथिंग विच इज, हाँ ये वाला देखता हूँ। ठीक है, सेकंड वाला। ठीक है, यहाँ पे ये यस है। ठीक है, 5 का भी यस है, 10 का भी यस है। ठीक है, अब मेरे पास 4 का है, 4 का भी यस है। देन सेकंड वन इज इजी वन इज 4। ठीक है, 4 का भी यस है। देन यू हैव 3, 3 के लिए 9 हटा दिया मैंने। 7, 15 यस, तो 15 है हो गया, तो 15 एंड 7 9, तो 9 है, 3 3 यस नहीं आ Sir, रहा। राइट, या sir, या टेल मी। sir, I have not, sorry, I'm not understood this. Is it to be like you are showing divisibility by 2, by 3? What is this Yes, yes and no yes, for? I didn't get it. yes. This number, if you see on the top, what is written? आप जरा ऊपर चेक कीजिए क्या 2, लिखा है। 3, 4, 5, 6, 9, 10. राइट, ये आपको डिविजिबिलिटी चेक करनी है इसकी। ठीक है, फॉर दिस नंबर। Acha, by divisible by 2. Okay, okay. Okay, okay. Got it. How to. तो ये आ गया ना, तो यहाँ पे मेरे को यस नो लिखना है। अब एक गलती से आपने यस की जगह नो लिख दिया, उससे बहुत जन करते हैं सर 3 से डिविजिबल है तो 9 से भी डिविजिबल है, तो 9 उसने यस कर दिया। ठीक है, तो अब आपको ढूंढना है कि कहाँ पे गलत है। ठीक है, सो अगर Correct, एक correct. गलत उसने कर दिया तो दे विल हैव टू, अगर आपका कंसेप्ट क्लियर है तो आपको बहुत टाइम लगेगा इसको होने के लिए, अदरवाइज 30 मिनट। अगर आप ये चेक करो, यहाँ पे कितने 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 4 36, 36 × 7, ये कितने क्वेश्चन है इसमें? 36 × 7 आप अगर देखोगे तो 4 2 21, 250 के ऊपर क्वेश्चन है, ये सॉरी 2 है, 252 क्वेश्चन है। दिस यू टू डू इट इन 30 मिनट्स। ठीक है, बहुत टाइम है, बहुत तो 20 20 मिनट में कर देते हैं बच्चे। राइट, दोज हु आर वेरी क्लियर, मतलब जब ऑड नंबर का मैंने व्हाट आई टीच इज ऑड नंबर है तो आपको इवन नंबर सोचना ही नहीं है। ठीक है, ऑड नंबर इज वेरी इजी टू डू इट, आपको सीधा इवन नंबर से खत्म कर दो। राइट, सो देयर आर सर्टेन ट्रिक्स व्हाट यू हैव। नाउ आई टेल यू, इफ समथिंग इज नॉट डिविजिबल बाई 2, इधर एन है, और समथिंग इज नॉट डिविजिबल बाई 3, समथिंग इज नॉट डिविजिबल बाई 5। ठीक है, तो जितने भी अगर दूसरी डिविजिबिलिटी टेस्ट है वहां पे मेरे पास है कि वो इसके कोई भी मल्टीपल है उसको सीधा एन आएगा, 2 4 6, तो ऑड वाले सारे इवन वाले सारे एन हो जाएंगे। 3 का एन है तो 6 9 12 15 वो सारे एन हो जाएंगे। 5 है तो 15 25 वो सारे एन हो जाएंगे, जो 5 का जो भी मल्टीपल एन हो जाएगा। इसका उल्टा है, फॉर एग्जाम्पल 9 का अगर डिविजिबल यस है तो उसके जितने फैक्टर है, 3 है, या अगर मेरा फॉर एग्जांपल 8 का यस है तो उसके जितने फैक्टर है, 2 है, 4 है, वो सारे डिविजिबल है। ठीक है, सिंपल है। अगर 12 का हो गया तो 12 के जितने फैक्टर है, 3 है, 6 है, 2 है, 4 है, वो सारे डिविजिबल है। अगर इसका यस हो गया तो उल्टा है, यहाँ पे मल्टीपल एन होता है, फैक्टर यस होता है। जब बड़ा नंबर से डिविजिबल होता है उसका फैक्टर में जाओगे तो उस हमेशा यस होता है, क्योंकि जब बड़े नंबर से डिविजिबल होता है तो छोटे नंबर से एब्सोल्युटली डिविजिबल होगा, उसमें कोई इशू नहीं है। राइट, सो दिस इज हाउ यू टू थिंक अबाउट दिस, कि वो क्या कर सकते हो। राइट, दिस इज सिंपल टेक्निक, सिंपल कंसेप्ट जो आप उसके बच्चे को सिखा सकते हो। राइट, और ये पार्ट ऑफ सिर्फ मेंटल मैथ आता है कि जहां पे आप ये करोगे तो सारी चीजें आपको मिलेगा। सेकेंडली फैक्टर जब करते ना बच्चों को, एक में जो क्योंकि बहुत ज्यादा 4 5 6 के पेरेंट्स है, मैं आपको ये क्लियर बताता हूँ कि आपको करना है। जब आप फैक्टर सिखाओगे उनको हमेशा आदत होती है, फॉर एग्जाम्पल मैं बोलता हूँ, अगर मैं बोलता हूँ 45 का फैक्टर बताओ, ठीक है, वो लोग करेंगे 1 3 5 एंड सो ऑन। मैं ये फैक्टर को अलाउ ही नहीं करता हूँ, मेरे क्लास में ये फैक्टर लिखना अलाउड ही नहीं है। मेरे पैटर्न में लिखना फैक्टर ऐसे ही लिखना होता है, 1 45
क्योंकि जब दो नंबर को मल्टीप्लाई करोगे तब जाके प्रोडक्ट बनता है, और उसी को डिविजिबल करना है तो आपको करना है। तो यहाँ पे 3, फिर यहाँ पे 15, फिर 5 और 9। बस यहाँ पे आपका मिस होने का चांसेस बहुत कम है। मैं हमेशा याद करता हूँ, मैं हमेशा रेकमेंड करता हूँ, आपको जब भी फैक्टर लिखना है, अगर बच्चे ने ऐसा लिखा है तो मैं अलाउ नहीं करता हूँ उसको लगे वापस लिखो। ठीक है, यू शुड ऑलवेज राइट इन दिस पर्टिकुलर फैक्ट। 45 का फैक्टर से मांगा है, तो आई जस्ट राइट 1, 45, 3, 15, 5, 9। दिस इज हाउ यू शुड राइट। मेरे को ऐसे फैक्टर चाहिए। इसमें अगर बच्चा कोई भूलेगा, डिविजिबिलिटी टेस्ट में थोड़ा सा वीक है, तो एक भूलेगा तो एक भूलेगा, मतलब एक कॉम्बिनेशन भूलेगा, पैर भूलेगा, हमेशा एक कभी नहीं होगा। इस केस में क्या होता है, 1, 2, 3 को भी भूल सकता है। ठीक है, उसको आइडिया नहीं होगा क्या रखना है, क्योंकि वो डिविजनली आगे जाएगा। सेकेंड, उसको 45 जाना है तो 25 तक, 22 तक जाना पड़ेगा कम से कम। यहाँ पे इसकी जरूरत नहीं, यहाँ पे तुमने 5 से 9 हो गया, 6, 7, 8, 9 में तुमने खत्म हो गया। यू विल फिनिश सम ऑफ द ट्रिक्स। अगर आप मैं बताऊं, फॉर एग्जाम्पल 36 में लेता हूँ, 36 आपको 6 में ही खत्म हो जाएगा। 36 जैसा नंबर है या 72 जैसा नंबर है तो आपको 7, 8 में ही खत्म हो जाता है। आपको 9 के आगे मोस्ट प्रॉब्ली जाना ही नहीं पड़ेगा, वेरी रेयरली आपको जाना पड़ेगा। बट अगर सिंगल टू डिजिट नंबर है तो आपको कभी नहीं जाना पड़ेगा। ठीक है, तो उसको आपको कितने भी नंबर से डिविजिबल है, फॉर एग्जाम्पल 72 में बताता हूँ। 72 कहाँ से डिविजिबल है, राइट? मैं यहाँ पे 1, तो यहाँ पे 72 है, 2 से डिविजिबल है, 3 से डिविजिबल है, इसके सामने वाला मैं लिख दूंगा। ठीक है, 4 से है, 5 से नहीं है, 6 से है, 5 से नहीं है, 6 से है, 6 से है, 8 से है, दैट्स इट, डन। आप 8 पे पहुंच गए, मेरा यहाँ पे 9 हो गया। 8 9 से 72, 6 का आ गया 12, 4 का आ गया 18, 3 का आ गया आपका 24। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा सा इश्यू चल रहा है, 36 एंड 72, खत्म। आपका 72 के सारे फैक्टर आ गए एक साथ, आपको 8 के ऊपर जाना ही नहीं पड़ा। आप कोई भी नंबर ले लीजिए, दिस इज द बेस्ट वे टू टीच द फैक्टर्स। तो ऐसे कुछ कंसेप्ट, कुछ मेंटल मैथ्स, कुछ वैदिक मैथ्स की ट्रिक्स मैंने ली है आपको। ठीक है, या अगर अगर आप देखो तो आदमी को, बच्चों को सोचना कैसे है। फॉर एग्जाम्पल डिविजिबिलिटी टेस्ट ऑफ एक 11 है, जो एक क्वेश्चन में लास्ट अभी बताता हूँ आपको, उसके बाद यू कैन आस्क मी क्वेश्चंस। एक वर्कशीट है जिसमें मैंने बहुत मेहनत से आई हैव क्रिएटेड दिस वर्कशीट, बहुत इंटरेस्टिंग वर्कशीट है, राइट? उसमें बच्चे को सोचने में मजबूर किया जाता है कि आपको सोचना कैसा है। ठीक है, एक नंबर में देता हूँ विच इज अराउंड 6 डिजिट और 7 डिजिट नंबर है। ठीक है, ये वाला। ठीक है, अब यहाँ पे ना जो उसकी डिविजिबल टेस्ट है, डिविजिबल टेस्ट पहले सिखा देता हूँ, अभी जस्ट मैंने लास्ट वीक ही दिया है मेरे बच्चों को, राइट? अब मैं जब कहता हूँ 11 का डिविजिबल टेस्ट, जिसको नहीं मालूम है मैं आपको बता रहा हूँ, डिविजिबल टेस्ट 11 का ये कि आपको ऑल्टरनेट पोजिशंस को ऐड करना है और उसको डिफरेंस निकालना है। अगर डिफरेंस हो 0 या 11 का मल्टीपल है तो ये आ सकता है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं यहाँ पे एक क्वेश्चन ले लूँ, फॉर एग्जाम्पल आई टेक दिस 5 to 7, 7 and 9, 16, 16, 8, 24। मैंने यहाँ पे 24 ले लिया। अब जैसे आप 24 लिखोगे, अगर ये करेक्ट है आपका और पोजिशन का, यहाँ पे देखा गलती से आपने यहाँ पे कर दिया, तो यहाँ पे रेड स्माइली देगा। तो आपको हर एक जगह पे एक हेल्प दिया है कि बच्चे का टोटल गलत ना हो। यहाँ पे ये 2, 5, 7, 12, 3, 15, ये 15, तो ये मैंने कर दिया। अब दोनों का डिफरेंस है 9। ठीक है, अब मेरे को 9 करने के लिए क्या करना पड़ेगा? ठीक है, या तो मेरे को डिफरेंस 11 करना पड़ेगा, विच इज मच इजियर टास्क। मैं डिफिकल्ट वाले पे जाता नहीं हूँ, लेकिन आपको 9 माइनस करना पड़ेगा, वो डिफिकल्ट है, वो होने वाला नहीं है, राइट? या तो 9 ऐड करना पड़ेगा, 9 सब्ट्रैक्ट करना। मेरे लिए इजी है 2 को सब्ट्रैक्ट करना, 2 को ऐड करना। तो या तो मैं इसको 2 को बढ़ा दूंगा, दैट इज 26 माइनस 15, आई विल मेक 11, और आई विल टेक 24 माइनस 13 विच विल बी अगेन 11। तो मेरा पर्पस सॉल्व हो रहा है, राइट? अब मेरे पास पोजीशन है, ये जो नंबर है सेम का सन नंबर मैंने यहाँ पे रखा है 3 टाइम्स। आपको 3 डिफरेंट नंबर्स आपको चेंज करने हैं टू मेक दिस डिविजिबल। अभी वो डिविजिबल एन का मतलब है वो डिविजिबल नहीं है, आपको उसको डिविजिबल बनाना है, राइट? आपको डिविजिबल बनाना है तो आपके पास पोजीशन है, मैंने आपको मार्क करके रखा हुआ है। तो आपको इस पोजीशन पे या ये पोजीशन पे, ये पोजीशन पे, ये पोजीशन पे या ये पोजीशन पे मेरे को 2 ऐड करना है, बिकॉज आई वांट टू मेक दिस 26। मैं यहाँ पे कर सकता हूँ, यस आई कैन डू दिस। मैं यहाँ कर सकता हूँ, यस आई कैन, बट आई कैन नॉट डू इट हियर। यहाँ पे मैं नहीं कर सकता क्योंकि वो 2 डिजिट बन जाएगा। सिमिलरली आई हैव टू सब्ट्रैक्ट 2 फ्रॉम हियर। तो कैन आई डू इट हियर, 2 सब्ट्रैक्ट, यस आई कैन सब्ट्रैक्ट। आई कैन सब्ट्रैक्ट 2 फ्रॉम हियर, आई कैन सब्ट्रैक्ट 2 फ्रॉम हियर। तो मेरे पास देर आर 6 कॉम्बिनेशंस
आई कैन डू इट विद द नंबर्स वेर आई कैन चेंज एंड मेक इट। अब किसी बच्चे को स्मार्ट है, उसको समझ में आ गया कि भाई ये तो बहुत इजी है, ठीक है। सो व्हाट ये करता है कि यहाँ पे एक आ गया 7, मैं जस्ट फॉर एग्जाम्पल आपको बता रहा हूँ 7, उसने यस कर दिया, ठीक है। उससे बोला कि सर को कहाँ समझ में आने वाला है, सर थोड़ी चेक करने वाला है, तो इसने 7 7 7, तीनों तीन यस आ गया आपके, राइट। लेकिन यहाँ पे फिर भी नॉट अलाउड है। आपको अगर एक ही नंबर चेंज किया, तीनों तीन यस होगा, तीनों तीन नंबर डिविजिबल है, लेकिन आपको आगे नहीं जाने देगा वो, इट इज नॉट अलाउड। क्योंकि आपको एक ही नंबर आप जब चेंज करोगे, आपके पास वो ऑप्शन नहीं है, ठीक है। आपको अलग अलग डिजिट में करना पड़ेगा, तब जाकर आपको सही आएगा, तब गुड टू गो है, तब आपको स्माइली आएगा। अदर तब तक आगे नहीं जाने देगा। तो आपको फोर्स करना पड़ेगा आपके बच्चे को कि कौन सा नंबर चेंज करूं, कौन सी डिजिट चेंज करूं, कहाँ पे अलाउड है, कहाँ पे अलाउड नहीं है। एंड देन इट इज ओनली सिंगल डिजिट, सो यू कैनॉट हैव अ टू डिजिट नंबर ऑल्सो। इज इट क्लियर? इसमें बहुत सारी चीजें, मतलब आई कैन गो एंडलेसली ऑन दिस, ठीक है। देयर लॉट ऑफ थिंग्स व्हाट आई कैन शो यू, बट अगर आपको कोई स्पेसिफिक ये है, आई हैव तो सर 50। ये जो वर्कशीट्स हैं तो ये भी बच्चा ऑनलाइन ही सॉल्व करेगा? यस यस यस, ये ऑनलाइन करना है। आपको स्माइली तो मिलेगा नहीं ग्रेड ना। नहीं तो ग्रेड 4 किड ऑल्सो यू विल सेंड ऑनलाइन वर्कशीट्स? मैम ग्रेड 2 वाले कर रहे हैं, मैं आपको, चलो मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। आई शो यू समथिंग, मेरा क्लासरूम एक बार दिखा देता हूँ आपको। ग्रेड 2 वाले बच्चे करते हैं बहुत सारे वर्कशीट, ये तो मैंने थोड़ी हाई लेवल की वर्कशीट बता दी। मैं अगर लोअर लेवल की वर्कशीट बता दूँ, तो एडिशन सब्ट्रैक्शन की बहुत सारी वर्कशीट है, वेदिक की वर्कशीट। क्योंकि अभी सेकंड ग्रेड का बच्चा, थर्ड ग्रेड का बच्चा अगर मेंटल मैथ्स करेगा, तो उसको ऑब्जेक्टिव इज दिस, मेरा सिंपल ऑब्जेक्टिव है, गिव नंबर ऑफ सम्स मोर एंड लेस टाइम। इफ यू कैन अचीव दैट, यू कैन डू वंडर्स, ठीक है। आपको जितना ज्यादा आप उसको कम टाइम में वर्कशीट दे सकते हो, उसका बच्चा आपका सॉल्व कर सकता है, उसके जैसा मैजिक कुछ नहीं है, राइट। ओनली थिंग इज पैटर्न उनको समझाओ, अपने आप वो कर लेगा बच्चा, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। आई शो यू माई क्लासरूम्स, ये जो सब सेम वर्कशीट जो मैंने आपको बताई ना, आई शो दिस सेम वर्कशीट आई गिवन इट टू ग्रेड 4, ग्रेड 5, ग्रेड 6, सबको दिया है मैंने, ठीक है। ग्रेड 4 और 5 को तो दिया ही है, एंड 3 को दूंगा मैं। 3 को अभी डिविजिबिलिटी चालू नहीं किया मैंने, अभी लास्ट वीक ही दिया है मैंने। आई जस्ट गिवन लास्ट वीक। आई जस्ट शेयर माई स्क्रीन। कैन यू सी माई स्क्रीन राइट नाउ? आपको स्क्रीन दिख रहा है मेरा? नहीं, इट्स स्टिल अपलोडिंग। अपलोडिंग है, ठीक है, थोड़ा सा टाइम लगेगा। हाँ, ओके। हाँ। ये कभी कभी, दिस इज माई रेगुलर क्लासरूम्स, ठीक है। अगर आप देखोगे तो यहाँ पे मेरे हर एक के अलग अलग बैचेस है, ठीक है। और ये सब एकेडमिक ईयर के हिसाब से होते हैं। दिस इज ऑल एकेडमिक एंड दिस इज ऑल ऑनलाइन क्लासेस। अब देखो, ग्रेड 2 का है, ग्रेड 3 का है, ग्रेड 4 का है, ग्रेड 5 का, ग्रेड 6 का, ग्रेड 7 का। मैं फोर्थ में जाऊँ तो ये देखो यहाँ पे। अब जबकि 50% क्वेश्चन में लाइव क्लास में सॉल्व कराता हूँ, बट इफ यू सी हियर, मैंने जब लिखा होगा ना यहाँ पे, यहाँ पे दिया नहीं अब तक मैंने वैल्यूएशन। ग्रेड 4 का भी हुआ नहीं, ग्रेड 5 का है। दिस इज सीसीसी कंसेप्ट करिकुलम एंड कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स। ये मेरा सीसीसी बैच है। वीआईपी मतलब, वीआईपीएम मतलब वैदिक विद मेंटल मैथ्स एंड आईपीएम प्रिपरेशन। देखो डिविजिबिलिटी टेस्ट, या इफ यू सी हियर, ये 3 वर्कशीट में डिविजिबिलिटी टेस्ट ऑफ 11 जो मैंने आपको अभी जस्ट बताया, ठीक है, ये वाला, ठीक है। ये वाला डिविजिबिलिटी 1 to 10 वो भी मैंने आपको बताया, ठीक है। एंड ये दूसरी वर्कशीट है जहाँ पे ये वाली वर्कशीट है, टेस्ट वन, ठीक है। ये 2 to 20 है, इसमें देखो आप रैंडमली चेंज होगा, 10 12 15 है। यहाँ पे 9 6 9 है, ठीक है। यहाँ पे देखो आपका 8 10 11 18 अलग अलग आ रहा है, 8 10 11 15 6 9 18, ये सब अलग अलग नंबर्स है, एवरी टाइम नंबर चेंजेस। क्योंकि इसमें कॉम्बिनेशन ज्यादा है, मेरे पास 7 कॉम्बिनेशन है, उतना ही देता हूँ,
तो वहां पे हर एक जगह पे ना अलग अलग आएगा, कभी 11 का आएगा, कभी 12 का आएगा, कभी 15 का आएगा, कभी 18 का आएगा। तो ये सारी चीजें अलग होती है यहाँ पे, राइट। अगर आप 6 में देखो तो 6 में भी शायद मैंने दिया हुआ है, ये शो यू द 6 ऑल्सो। नहीं, 6 में अभी तक नहीं गया है, 6 में मैंने ज्योमेट्री लिया हुआ है। तो 5th में आया, 4th में मैं दूंगा अभी उनको डिविजिबिलिटी टेस्ट। ठीक है, धीरे धीरे 3rd में भी आएगा, क्योंकि 3rd में थोड़ा कंसेप्ट, 3rd में तो एक्चुअली डिविजिबिलिटी टेस्ट होता ही नहीं है, लेकिन आई इंट्रोड्यूस देम टू डिविजिबिलिटी टेस्ट क्योंकि कॉम्पिटेटिव एग्जाम में उनको बहुत काम आता है। सो दिस इज ऑल हैव टू बी डन ऑनलाइन। इसमें फायदा ये होता है ऑनलाइन में, ये वर्कशीट का सबसे बड़ा बेनिफिट ये है, अगर आपको बच्चे को जो नहीं समझ में आता है, ठीक है, वो वहां पे छोड़ देगा। और मेरी इंस्ट्रक्शन होती है, बेटा तुमको नहीं समझ में आ रहा है, डोंट वेस्ट योर टाइम, जस्ट लिव इट, क्लिक द फोटो, सेंड इट ऑन द ग्रुप, मैं तुमको समझाऊंगा। ठीक है, सो दैट इज यूजुअली माई इंस्ट्रक्शन टू द पेरेंट्स कि आपको करना ही है, जरूरी नहीं है, राइट। आई वर्क मोर ऑन सेविंग द टाइम ऑफ द चाइल्ड, इससे मेरे साथ उसकी सबकी दोस्ती अच्छी होती है। एंड इन फैक्ट आई शो यू सम ऑफ द थिंग्स व्हाट आई टोल्ड यू कि दिस टाइम आई हैव इंट्रोड्यूस, आई शो यू द वन ऑफ द गुड थिंग्स व्हाट आई हैव डन। ठीक है, और बहुत अच्छे से काम कर रहा है। जस्ट अभी 15 डेज ही हुआ है मेरे को चालू करके, लेकिन आई शो यू यहाँ पे, एक मिनट। सी, दिस इज आई टेक, दिस इज आई हैव डन इट फॉर ऑल द ग्रेड्स। अब आप चेक करोगे तो यहाँ पे है, सबको यहाँ पे देखो, यस नो यस नो यस नो यस नो लिखा हुआ, कलर कोडिंग के साथ चेंज किया हुआ है, ये भी प्रोग्राम्ड है। ठीक है, हर स्टूडेंट को एवरी डे अपडेट भेजना है कि मैंने क्या किया क्या नहीं किया। इन अ वीक आई विल टेक कि बेटा तेरा क्या असाइनमेंट पेंडिंग है, क्या इशू है। एंड पेरेंट्स आर एब्सोल्युटली नॉट अलाउड इन दिस अपडेट्स, पेरेंट्स कोई अपडेट नहीं भेजेगा, पेरेंट्स आर स्ट्रिक्टली नॉट, ओनली स्टूडेंट, वेदर वो, आप देखो ग्रेड 10 में है, ग्रेड 2 भी है, ग्रेड 3 भी है, ग्रेड 4 भी है, सारे ग्रेड्स है, राइट, दिस ऑल माई स्टूडेंट। ओके, सो ये सारी चीज देख रहे हैं, यहाँ पे रिवॉर्ड आता है, इसके पास रिवॉर्ड होगा, देखो सारे स्टूडेंट यहाँ पे वापस रिवॉर्ड में भी है। ठीक है, आप रिवॉर्ड में होगा कि जून में जो भी उसने परफॉर्म किया होगा, आपके रिवॉर्ड के अंदर मैं आपको बताता हूँ रिवॉर्ड के अंदर मैंने क्या क्या रखा हुआ है, राइट। आई जस्ट शो यू हियर एवरी ग्रेड, इट इज रिटन ब्लैक एंड व्हाइट। ठीक है, अगर आप क्लास वर्क में जाओगे तो मैंने यहाँ पे रिवॉर्ड का स्पेशल रिकॉर्डिंग मैंने रखी हुई है, रिकॉर्डिंग उनको मिल जाती है, रिवॉर्ड मैंने लिख के दिया है, ये देखो रिवॉर्ड दे इसके, कंप्लीट एंड सबमिट ऑल असाइनमेंट ऑन और बिफोर टाइम विच इज कंप्लीट इन ऑल रिस्पेक्ट। ये मैंने पहले ईयरली रिवॉर्ड रखा था, 1000 रुपीज में दूंगा। अब बोला कि 1000 रुपीज वो वेट नहीं करेगा, सो एंड मेक इट 1 मंथ। ठीक है, जब मैंने पहले सेशन लिया था मार्च में पेरेंट्स का, तो मैंने ये बोला था कि आई गिव इट एंड ऑफ द ईयर। बाद में मैंने सोचा कि ये तो मेरा पर्पज सॉल्व नहीं हो रहा है, बिकॉज उनको इंसेंटिव नहीं मिल रहा है। नाउ एवरी टाइम आई गिव दिस रिवॉर्ड। नाउ जैसे ही 500 क्रॉस हो जाएगा, आई जी पे 500 टू द पेरेंट, और 500 को बोलूंगा 500 रुपीज उसके पिगी बैंक में डाल दो। नाउ दिस वन वर्क, इट गोज टिल जुलाई अगस्त में, मेरा टारगेट है कि जुलाई अगस्त में इट विल गिव। नाउ करंटली आई एम गेटिंग रिजल्ट, एज अ रिजल्ट आई एम गेटिंग 80-85% रिजल्ट मेरे को मिल रहा है। सारे जन आईपीएम क्लियर कर रहे हैं, सब कुछ हो रहा है, वेरी गुड, लेकिन 20% फिर भी लैगिंग है। ठीक है, बच्चों का इंटरेस्ट नहीं आ रहा, तो धीरे धीरे आई एम क्रिएटिंग दिस इंटरेस्ट। ठीक है, उसमें से आई एम अज्यूमिंग कि 50% जो बाकी के हैं, 5% रहेंगे, उसके लिए थोड़ा अलग सोचना पड़ेगा। ठीक है, दे आर वेरी स्टबर्न किड्स, जिसको या तो मैथ्स में इंटरेस्ट नहीं है या फिर कुछ नहीं हो रहा है, बट यहाँ होता है 2-5%, 2-3 किड्स होते हैं जो कुछ भी करो नहीं मानते, मे बी पैम्पर्ड चाइल्ड है या फिर पेरेंट के कंट्रोल में नहीं है, थोड़े ग्रोन अप हो गए, वो सारी चीजें। बट जितने जल्दी हो सके लोअर ग्रेड में, 1 to 5 ग्रेड, तो मेरे को बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं होता है उसको कन्वर्ट करने में। ठीक है, बहुत अच्छे से करते हैं। एंड ये बहुत बड़ा इंसिडेंट, मेरा इतना बड़ा सक्सेस है ये, मेरे को बहुत प्यार स्टूडेंट मुझे, सर अब पक्का दोगे आप, उनको अभी तक विश्वास है, सर पक्का आप मेरे को रिवॉर्ड दोगे, सर पक्का आप मेरे को मनी ट्रांसफर करोगे। ये दे डोंट बिलीव, आई सेड कि आई विल डू इट एंड पर्पसली। और ये जो अगर देगा ना, तो 20-25% मेरा जो फीस है, ये मेरे रिवॉर्ड में जा रहा है उनका, अगर बच्चा सब कुछ क्वालिफाई करता है इसके अंदर, जो कि है 5% स्टूडेंट है मेरे पास, विच विल क्वालिफाई इन ऑल द क्राइटेरियाज। मैंने देखो अटेंडेंस रखा हुआ है, टाइम पे ज्वाइनिंग रखा हुआ है, शेड्यूल रखा है, आपको मेरी जितनी वर्कशीट मैंने भेजी है, जितना मैंने रखा है, आपको सब कुछ उसके नोट्स स्क्रीनशॉट जो भी है, आपको अच्छे से मैनेज करना है, अच्छे से डाउनलोड करके रखना है, अच्छे से जगह पे रखना है, मैं रिव्यू करूंगा उसको, एंड देन आई विल गिव द रिवॉर्ड। सो ये हो गया कि अगर मेरे को ये समझ में आ गया कि बच्चा अच्छा कर रहा है, दिस विल इवेंचुअली गिव अ गोल मच फास्टर, मच इजियर, मच फास्टर वे। ठीक है, मच इजियर है, बच्चा अपने आप कॉन्फिडेंट हो जाएगा, अपने आप सब कुछ मैनेज करने लग जाएगा। सो ये वर्थ है टाइम, जो भी है, जो भी मैं 20-25% रिवॉर्ड दे रहा हूँ, और ये आप अगर देखोगे तो हर एक ग्रेड में मैंने दिया हुआ है।
It is given to all grades. So they have access to this, and I make sure that they read once in a week at least. तो उनको समझ में आएगा कि नहीं ये रिवॉर्ड आने वाला है, एंड जब मैं दूंगा हर एक क्लास में मैं अनाउंस करूंगा, आई विल शो एवरीवन कि दिस इज जीपे इज गिवन। मैं स्क्रीनशॉट लेके सबको बताऊंगा, देखो ये अमर को गया, ये विजया को गया, ये वन्या को गया, ये सारी चीज मैं दिखाऊंगा उनको, एंड आई विल क्रिएट अ फोमो फॉर देम। यार इसको मिला, यार मैंने नहीं किया, मैंने थोड़ा सा कर लिया होता, तो आई मोटिवेट एट द सेम टाइम, आई मोटिवेट। ठीक है, ये देखो रिवॉर्ड्स, हर एक जगह पे आपको रिवॉर्ड दिखेगा, हर एक जगह पे लिखा हुआ रिवॉर्ड मैंने, डिपेंडिंग ऑन कैसा है। ये लोअर ग्रेड में 50 रुपीज रखा है, हायर ग्रेड में 100 रुपीज रखा है, राइट। सो दिस इज हाउ आई क्रिएटेड। यस, टेल मी मैम। Sir, I just wanted to know that in grade 2, what kind of topics or, teaching, मैंने मेरे सॉल्यूशन ग्रुप में हो मैम। हाँ हूँ सर। ठीक है, मेरे सॉल्यूशन ग्रुप में ना मैंने बहुत बार डाला हुआ है क्या क्या टॉपिक है, मैं आपको बता देता हूँ अच्छा, वहाँ पे। बट मैंने बहुत बार डाला है जितने मेरे, क्योंकि मेरे ग्रेड वाइज ग्रुप्स है, तो मैं बहुत स्पेसिफिक चीज डालता हूँ। बट मैं आई शो यू, यहाँ पे आपको पोर्शन में ना आपको ये दिख जाएगा, देखो आई जस्ट शो यू है, टॉपिक्स लिखा है ना मैंने वहाँ पे, आपको दिखेगा वहाँ पे। और ये भी टास्क दिया है कि बोला मैं 2 टॉपिक आपको नहीं कराऊंगा, आपको मेरे को पकड़ना है कि मैंने कौन से टॉपिक नहीं कराया है। सो आई एम कीपिंग देम अलर्ट, बुक मैंने दिया हुआ है इसके। और आपके टॉपिक्स, यहाँ पे टॉपिक्स दे लिखा है, अच्छा वेरी गुड, यहाँ पे टॉपिक लिखा है बेटा, मैं आपको भेजूंगा। आई सेंड देखो, हर एक जगह पे ना टॉपिक लिखा है मैंने, देखो इसका शायद ग्रेड 2 में रह गया होगा, बट आई जस्ट शो यू एवरी, देखो टॉपिक, ग्रेड 3 के टॉपिक्स, टॉपिक लिस्टेड है यहाँ पे। और बहुत जगह पे तो टेक्स्ट भी लिखा है, बहुत हायर ग्रेड में तो मैंने टेक्स्ट भी रखा है, तो आपको रीड करने में आसानी हो, समझने में आसानी हो, हर एक जगह पे टॉपिक है। सर इसमें मैं नहीं हूँ शायद, तो ये मेरा एक्सेस, ये तो इसको क्लासरूम है, एक्सेस। इसमें रहोगे भी नहीं आप, ये ओनली दिस हाँ, दिस एक्सेस इज ओनली फॉर दिस, बट मैंने आपको यहाँ पे भेजा होगा। ठीक है, सॉल्यूशन ग्रुप में ना मैं देखता हूँ यहाँ पे अगर मेरे को दिखता है तो, क्योंकि वेब में बहुत सारी चीज़ नहीं दिखती है। सॉल्यूशन ग्रुप ग्रेड 2, और मैं रेकमेंड करता हूँ आप ना ये ग्रुप मत छोड़ो कभी भी, सॉल्यूशन ग्रुप। ये सॉल्यूशन ग्रुप मेरा, आप दूसरे कोई ग्रुप में रहो ना रहो, इसमें बहुत सारी चीज़ें मैं डालता हूँ, मैं रिकॉर्डिंग डालता हूँ, बहुत चीज़ मैं यहाँ पे फ्री में ऐड करता हूँ। ये देखो यहाँ पे, अगर yes, I am there in this group. ग्रुप है ना, तो आप देखो उसमें मिलेगा, अगर आपने डिलीट नहीं किया होगा तो आपको मिलेगा, मैं यहीं से वापस इसको वापस भेजूंगा। आई विल Okay, सेंड sir. यू अगेन ऑन दिस मेरा पोर्शन। और आपको मेरे को पर्सनली भी कर दीजिए अगर आप ग्रुप में हो, आई डोंट नो वेदर आपका नाम मैंने सेव करके रखना, आपका नाम क्या है मैम? सर किंजल, हमारा फोन पे भी बात हुआ था इन तो डिटेल। आपने मेरा बात हो रहेगा तो आपका नंबर सेव होगा मेरे पास, 99 हाँ, क्वेश्चन। यस सर। एंजल, हाँ आई डोंट सर ये यस, गेट। सॉल्यूशन ग्रुप अलग यस है, सर, अभी जो करेक्ट आपने करेक्ट। ग्रुप में लिंक भेजा है, हाँ, सॉरी मैम। अभी जिस ग्रुप के थ्रू हमने ऐड किया है, तो ये सॉल्यूशन ग्रुप उससे अलग है। अलग है, एक वेदिका मैंने बनाया है, सॉल्यूशन ग्रुप का तो मैं बहुत बार भेजते रहता हूँ लिंक, टू मनी टाइम्स आई सेंड यू ऑल माई। तो सर हम सॉल्यूशन ग्रुप में नहीं है, तो हाउ कैन वी गेट आवरसेल्फ एडेड? मेरा बुक एक्सचेंज में आपको मिलेगा कभी भी, लेकिन आपको नहीं है ना, तो आप ग्रुप में ना बुक एक्सचेंज में डालिए कि सर मेरे को सॉल्यूशन ग्रुप का लिंक डालो, मैं वापस सारे ग्रुप का डाल दूंगा मैं। ओके ओके। सॉल्यूशन ग्रुप इज द मेन ग्रुप जहां पे आपके पास मैथ्स के रिलेटेड कुछ भी इश्यू है। अगर मैं आपको 7 ग्रेड का या 6 ग्रेड का ग्रुप बनाऊं, इतने सारे पेरेंट डाउट डालते हैं, मतलब इट इज वेरी एक्टिव ग्रुप। एक पेरेंट हैदराबाद से है, वो सारे इतने सारे क्वेश्चन डालती है, एटलीस्ट मतलब जब भी वो प्रिपेयर करती है ना, एवरी वीक में 3 4 क्वेश्चन 5 क्वेश्चन होते हैं उसके। एंड इसका खूबसूरत बात यह है कि मेरा ग्रुप ओपन है, मैं किसी को रिस्ट्रिक्ट नहीं करता हूं कि आप उसका सॉल्यूशन मत पोस्ट करो, मेरे को ही सॉल्यूशन पोस्ट करना नहीं। सॉरी, पेरेंट्स खुद पोस्ट करते हैं उसके सॉल्यूशन। कितने पेरेंट्स तो इतने डेडिकेटेड होते हैं बेचारे, प्रॉपर सॉल्यूशन लिख के पोस्ट करते हैं। मैं तो यूजुअली टाइप करता हूँ कि भाई ये टैप करो, ये करो करके, वो तो प्रॉपरली सॉल्यूशन करके भेजते हैं। ओनली थिंग इज माई ऑब्जेक्ट ऐसी, मैंने ऑनेस्टली में जब से व्हाट्सएप आया 15 साल, 14 15 साल हो गया, मेरा ऑब्जेक्टिव ये है कि व्हाट्सएप ग्रुप इतना इफेक्टिव हो कि जो पेरेंट्स अच्छे हैं वो भी दूसरे को हेल्प करें। लेकिन पेरेंट ना पोस्ट ही नहीं करते हैं, मैं ही सारी चीजें मेरा पोस्ट करते रहता हूँ, लेकिन पेरेंट पोस्ट ही नहीं करते हैं। अच्छा, नाउ आई मे हैव टू एंड।
अगर आपको कुछ डाउट है तो आप मेरे को पूछिए। आप सॉल्यूशन ग्रुप को यूज करिए, आप गूगल अपना बुक सेक्शन ग्रुप है उसमें करिए, वैदिक ग्रुप में डालिए, आपको जो डालना है वहां पे डालिए, मैं आपके सारे के क्वेश्चन करूंगा। पर्सनल में आपका डालना है तो मेरे को रिप्लाई करूंगा, थोड़ा सा डिले होगा मेरा, ये मेरा ड्रॉबैक है, ठीक है, क्योंकि मेरा हमेशा एनी टाइम कुछ ना कुछ कन्वर्सेशन बाकी रहता है, कभी कभी 2-3 दिन के बाद बाकी रहता है। मेरे को सबसे इजी है, आपको इमीडिएट एक्शन चाहिए, कुछ आपको करनी है, आपको इमीडिएट क्लास वाइज ज्वाइन करना है या ट्रायल क्लास में आना है, मेरा रिक्वेस्ट है कि आप मेरे को कॉल कीजिए सीधा, दैट इज मच बेटर। और मैं आपको रिप्लाई ना करूं उसके ऊपर या मैं ग्रुप में ऐड ना करूं तो आप मेरे को फॉलो अप कर देना, 99% ऐसा होगा नहीं। मेरे को बेस्ट टाइम है कॉल करने के लिए आफ्टर लेट इवनिंग, 9-10 ओ क्लॉक के बाद, कुछ मेरा इक्विटी के क्लासेस होते हैं, वो थोड़ा कभी 11-12 बजे तक चलते हैं, बट बेस्ट टाइम है मॉर्निंग में कॉल कीजिए आप, 12-1 बजे के पहले। यूजुअली आई एम अवेलेबल, अच्छा खासा टाइम दे सकता हूँ आपको, कोई इशू नहीं है। और किसी को कुछ टाइम है तो प्लीज क्विकली पूछ लीजिए मेरे को, क्योंकि 11 बजे का दूसरा मेरा इक्विटी का क्लास है, वो मेरे को ज्वाइन करना है। सर मुझे खाली डिटेल्स चाहिए कि ग्रेड 2 के लिए अगर ज्वाइन करना है या स्टार्ट करना है मेंटल मैथ्स, ओरल मैथ्स, ये कॉम्बिनेशन, तो उसका फीस किस तरह से रहेगा, मैं सेशंस रेकमेंड किस, वो आपको ये डिटेल्स। करूंगा, मेरा जो वीआईपीएम बैच है ना, जो मेरे वीआईपीएम बैच है उसको ज्वाइन करो। आपको उसके लिए सेशन के लिए आना है तो सैटरडे होता है मेरा अराउंड 2 ओ क्लॉक, आप 2 ओ क्लॉक को ज्वाइन कीजिए। जिसको भी अगर लाइव क्लासेस में आना है ना, मेरा एक बैच चल रहा है, आपको देखना है कि मेरा बच्चा कर रहा है नहीं कर रहा है, मैंने 1-2 वीक हुआ है चालू करके, हार्डली 1-2 चैप्टर हुए मेरे। अगर आपको चेक करना है तो आप उसको ज्वाइन कर सकते हो। आपके ग्रुप डिस्कशन में आपको, मैं आपको ग्रुप में डाल दूंगा, आपको फीस, उसका शेड्यूल, उसके लिंक, उस सब कुछ मिल जाएगा आपको। हाँ सर, और थैंक सर यू। स्टैंडर्ड 4 के लिए भी प्लीज। हाँ, मैं आपको बोल रहा हूँ ना, आप मेरे को बता दीजिए, अगर आपको सी बेसिकली आप लिख दीजिए कि सर मेरे को ट्रायल क्लास लेना है, ये जो मेरे है उसमें मैं आपको ऐड कर दूंगा, ठीक है। आप 1-2 सेशन तो के लिए भेज सकते हो उसको, आपके बच्चे को, आप भी खुद ज्वाइन करना चाहते हो आप खुद ज्वाइन कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। आपको डीएम करे ना मतलब। नहीं नहीं, डीएम आप ग्रुप में डालो कि आई वांट टू ये अटेंड दिस, वाले वैदिक मैथ्स ये एक्सेल वाले। यदि किस में भी डाल दो, अच्छा ओके सर। मैं रिप्लाई यूजुअली करूंगा, लेकिन नहीं करता हूं तो मैं आपको पर्सनल में कॉल कर लेना कि मेरे को कर लेना। हाँ जी सर ओके। अगर मैं आज ऐड नहीं करता हूं, आपने मेरे को डीएम किया है, मैं यूजुअली रिकमेंड करता हूँ ग्रुप में डालो, ग्रुप में मैं जल्दी रिप्लाई करता हूँ। ठीक है सर ठीक है डन। ओके। सर बाई चांस आप ऑफलाइन क्लासेस भी लेते हैं क्या अभी? नहीं। ओके। और जरूरत नहीं पड़ेगी आपको, थोड़ा ना एक माइंड, मैंने बोला ना, लोगों को कंसेप्ट होता है कि ये ऑफलाइन, मेरे लिए ऑनलाइन इतना ब्यूटीफुल ज्यादा है, ऑफलाइन में भी लेता था पहले। ऑफलाइन में मेरा इफेक्टिव 15 मिनट तो कभी कोई क्लास में वेस्ट होता ही था। कोई कम जाएगा, कोई जल्दी आ जाएगा, कोई कुछ होगा, कुछ ये होगा, कोई पेरेंट का फोन आएगा, सर हम ट्रैफिक में अटके, ये हो रहा है वो हो रहा है, थोड़ा 10 मिनट रुक जाओ, 5 मिनट रुक जाओ, ये होता ही है। इसमें आपने रिवॉर्ड में देखा होगा तो मैंने क्लियर लिखा था, इज वेरी क्लियरली मेंशन, 3 मिनट के अंदर आपको ज्वाइन करना है, और विद इन 5 मिनट मेरा मैसेज चला जाता है कि आ जाओ। और मेरे स्टूडेंट को भी, अगर मैं ज्वाइन नहीं करता हूँ, मेरा कभी कोई क्लास ओवररन हो गया या मैं कुछ नहीं कर रहा, मेरे कम्युनिकेशन नहीं आया, तो विद इन 5 मिनट, अगर 5 मिनट कैसे ही क्रॉस हो गया, दे हैव टू कॉल मी कि सर हम क्लास के लिए वेट कर रहे हैं, आपने ज्वाइन किया है। वेरी रेयरली होता है लेकिन होता है, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल मशीन नहीं होगा, एकदम टाइमर अलार्म से बजेगा। होता है कभी कभी, कभी एक आध क्लास ओवररन हो जाता है, तो उनको इंस्ट्रक्शन है कि अगर मेरा क्लास आपको बोलता है होस्ट इन अदर मीटिंग, क्योंकि मेरे बैक टू बैक क्लासेस होते हैं कभी कभी, तो उनको बोलता हूँ कि लेकिन फिर भी 5 मिनट ऊपर हो गया तो उसका टाइम लिमिट खत्म, तो आप सीधा कॉल करो। क्योंकि कभी कभी होता है कि मेरा ध्यान नहीं रहता टाइम पे, वेरी रेयरली होता है लेकिन ये होता है, ठीक है। तो आप जिसको भी क्लासेस देखना है, आपको यू वांट टू अटेंड 1 और 2 क्लासेस, आप कहिए, मैं विधि के लिए ऑल सेशन लूंगा, ठीक है, आई टेक इट वन ऑफ द सेशन जब मैं किड्स को बुलाऊंगा, ठीक है, एंड दैट विल बी वेरी 5 किलो स्पेसिफिक, साकर रहेगी। 5 या 9 किलो हूँ लेना होता। ठीक है। चलिए, और किसी को कोई डाउट है? दैट आई मे हैव टू, सॉरी आई हैव टू ऐड बिकॉज आई हैव टू ज्वाइन एट 11 ओ क्लॉक, ठीक है, वहां पे मेरा ये क्लास है, तो आई मे हैव टू ऐड इट। आप मेरे को ग्रुप में डालिए, पर्सनल में डालिए, कॉल कीजिए, आई विल रिप्लाई। मेरा अभी 2-3 घंटे क्लास में रहूंगा, उसके बाद मैं फ्री हूँ, ठीक है। Thank you so much, sir. We'll get back on the group. थैंक यू वेरी मच, Thank you, थैंक्स sir. फॉर अटेंडिंग, थैंक्स, आई एम हैप्पी दैट एटलीस्ट ऊपर फिफ्टी नीचे देख के अच्छा नहीं। परसेंट स्टिल इन द क्लास एट थैंक यू द, सर। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू सर।